After 16 days of gripping action, it's time for the grand finale. The two best teams in the competition now face off for the ultimate prize. Khyber Pakhtunkhwa pack a lot of firepower. In Sahibzada Farhan, they have the tournament's top scorer. It's been slammed straight back over the bowler's head for 6. And in bowling, Imran Khan Sr. has claimed the highest number of scalps so far. Edge and taken the comeback. They have a leader who can motivate. Captain courageous Iftikhar Ahmed has led from the front in their last 2 wins against Northern. And a bit more to that. That's gone all the way. Central Punjab's convincing win over Sindh in the semis has established them as tough opponents with an inspiring leader in their skipper Wahab Riaz. Ahmed Shehzad has been in blazing form, and Kamran Akmal seems to have rediscovered his touch. Down the ground, that's a very, very good shot. In bowling, Qasim Akram and Fahim Ashraf have impressed by keeping the run rate down and providing critical early breakthroughs. Will Khyber Pakhtunkhwa successfully defend their title, or will there be a new champion? Good evening and welcome to this all-important final of the National T20. It's Khyber Pakhtunkhwa facing home city Central Punjab here at the Gaddafi Stadium, Lahore. Here we are. A big welcome to each and every one of you who've been following these 32 games, and today being the 33rd match, and it's the final. Now, two best teams. You expect Central Punjab and Khyber Pakhtunkhwa to make it out here. 7 wins each out of 10 games, and they've done so well. Individual performances and collectively as a squad. Now, who's going to be a winner today? Will the toss play a major role? What's the weather going to be like? So many things to look into. But one thing's for sure, whatever you've done in the tournament, that's just gone into the past. It's about how you come out as a team today. Mike Haseman alongside me. And I think that's a very good point, because this is a big game. I mean, you often see quotes and read quotes and hear quotes from players saying, it's just another game. It's not really a final. It's another game. Might be a World Cup final. Might be something. Might be New Zealand against Pakistan in Sharjah, second game in a couple of weeks' time. New Zealand are saying it's just another game. That is not going to be another game. And this isn't going to be another game. The guys are going to be edging the change room now. They're going to be fired up for this. This is going to mean a lot to the guys. It's going to mean a great deal to the captains. That's important. And obviously the boys that aren't playing here, the international players, are going to be watching this very closely to see what happens. This is a big game. It is indeed. And having said that, you also need to keep in mind that people have been worrying about what do you do, bat first or chase? If you look at the numbers, you might want to chase. But then again, it's the final. The pressure is different. I'm still a chaser, though. I think in a big game, you still want to chase. I don't see... I mean, if you look back at the record throughout the tournament, 22 games we won by the side chasing, compared to 11 games won by the side batting first. So I'm still a chaser. I think worldwide, you can actually pace things a bit better. Yeah, I'm a chaser. Okay. I don't change on that. Well, let's find out what the pitch looks like for the big final. The stage is set, and now is the battle for the title. I'm out in the middle with tonight's pitch, and you must be wondering why I have this bat in my hand. Well, to be very honest, when I look at that wicket, I was craving to bat. So this one has used previously, and around 780 runs were scored on this wicket in a day. So batters, there are a lot of runs for you. Just come out and flaunt your skills. And bowlers, you need to work hard. Make a plan, hit the right length with pace within the wickets, go with wider yorkers to unsettle the batters, or use your variations in right, line and length. That's important. Remember, you can have a plan, but execution is the key. Bottom line, whatever you do, play your hearts out, because tonight is your one shot at this trophy. You want to bat on this trip, and of course, why not? But if you're chasing, that's fine.
What do you do if you're batting first? What kind of score? Well, I'll tell you what, I mean, I think you've still got a halfway mark. I'm a believer in this sort of game that you want to set the 10 over. That's a really important start, I think. 10 overs. Yes, if things don't go right at the very start of the innings, then you obviously change. At 10 overs, if you're no more than 2 down, you've heard me say it time and time again, 70 runs. If they're going really well, 80 runs, you can adjust that. But that's a great platform to chase from, and then you can cut loose in those last 6 overs. Okay, Bazid Khan is out there with the 2 captains. Let's have the toss. It's final time, and for the final time, we're ready with the toss. We've got the 2 captains, Iftikhar Ahmed, Wahab Riaz, match referee already, Ali Naqvi. I think Iftikhar has the coin. Tails. Tails is the call. Oh. It's a heads. Iftikhar, toss जीत के क्या करेंगे? हाँ, बॉलिंग करेंगे। इसकी कोई वजह फाइनल मैच है? बाद में थोड़ा ड्यूक पड़ती है तो विकेट ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वहाँ बैटिंग पहले आ गई, फाइनल में काफ़ी लोग कहते हैं कि बैटिंग पहले करनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है बैटिंग पहले करनी चाहिए क्योंकि फाइनल मैच है और क्या कहते हैं, रन्स ऑन द बोर्ड इज़ ऑलवेज अ प्रेशर ऑन द अदर टीम। इफ्तिखार, मुकाबला यही होगा, आपकी एंड में बैटिंग जो है बहुत ज़बरदस्त रही आपकी टीम की, इनकी बॉलिंग एंड में बहुत ज़बरदस्त है, शायद मुकाबला वहीं पे है। हाँ, बिल्कुल फाइनल मैच है, दोनों अच्छी टीमें हैं तो मुकाबला अच्छा होगा। वहाँ आपकी टीम में तो एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो फाइनल में एक्सपीरियंस काउंट करता है या दिन काउंट करता है? एक्सपीरियंस बिल्कुल काउंट करता है, लेकिन मेरा ख्याल है साथ साथ लक भी बहुत लक का भी बड़ा फैक्टर होता है। मेरा ख्याल है कि जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा, जो एग्जीक्यूशन अच्छी करेगा आज के दिन में, उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी इंजरी ठीक है? जी, बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। इफ्तिखार, आपकी फॉर्म तो बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन आसिफ अफरीदी की अगर बात करें तो वो आपके मेन बॉलर हैं, जो आप मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स खेल रहे हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। जी बिल्कुल, आसिफ अफरीदी काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलिंग भी करता है और काफ़ी एक्सपीरियंस बैटिंग, साथ में बैटिंग भी करता है, तो उसके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा लेंगे। अब आपकी टीम में कोई चेंजेस? कामरान अकमल खेल रहे हैं? हाँ, सेम टीम खेल रही है। इफ्तिखार, आपकी टीम में जी एक चेंज है, मुसद्दिक की जगह आदिल अमीन खेल रहा है। So the news out here in the center is that Khyber Pakhtunkhwa have won the toss and have elected to bowl. Well, no surprises there. Now, Hazy, when you look at these two sides, you can actually go on man-to-man marking because at various stages of the game, you can spearhead. You could got enough spinners on each side, you got good openers on each side, and then the fast bowlers. I must say I'm delighted that Wahab Riaz is fit. I was worried about him yesterday. That was a concern. I know he said at the presentation he was going to be okay, but it depended how he woke up this morning. So that's great news. Obviously, KP have got some serious good batsmen in Farhan, and Gullam played beautifully, as we know, and also Popeye, as I call him, Iftikhar. So it's a very different situation to Central Punjab. But their batting power play is really good. I mean, if I can just bring in a stat here, Central Punjab's power play is 11 runs better off throughout the tournament. Sorry, since they've been in Lahore from KP. So they can take a real advantage there. 11 runs is a big spread after 6 overs. Well, actually, when you look at Central Punjab, because they're batting first now, good thing for them is that just at the right time, they've got their opening pair fixed. Kamran Akmal's performance yesterday and those inside-out shots over extra cover. I thought they both played beautifully. I really did. Obviously, Kamran was really disappointed when he was dismissed. He would have loved to have been there at the end, I'm sure. And he was running out of puff, I think, perhaps a little bit. And that didn't last to the end. So that was a bit disappointing. But, I mean, they played really well and took on the spinners nicely, as Akmal often does. And also when you talk about the spin options that these two teams have now, with Qasim Akram performing the way he did and Zafar Gohar, and from the other side Asif Afridi, Khalid Usman and Iftikhar himself, this is going to be a great test for the batters. I thought they played pretty averagely yesterday against Qasim. I thought that was Sindh. I thought it was pretty average batting really against him. He got 315 and that was good. I think Afridi's going to be a key player again. His run rate so far in this tournament, runs per over that is just a shade around the 6 mark, just a little bit over. That is top notch. Are you going to go with the win the toss, win the match, or do you have a winner here in your mind? I'm going with the team I backed right at the start, and that's KP. KP. I got Central Punjab. So enjoy the final, Hazy. Thank you. And we're going to have fun together. Let's enjoy a good game of cricket. This is the final of the National T20.
कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जहां पर फैसला कुन मारगा रही अब शुरू होने को है। और पहली इत्तला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा ने टॉस जीता और इफ्तिखार अहमद ने पहले बैटिंग करने की दावत दी सेंट्रल पंजाब को, जिसके दोनों ओपनर्स मैदान में पहुंच गए हैं। अहमद शहजाद जो टूर्नामेंट के सेंट्रल पंजाब के टॉप ओपनर हैं, 300 रन बना चुके हैं 129 के स्ट्राइक रेट से। वो टीम में वापस आए, फॉर्म में वापस आए। और उनके साथ मोहम्मद अखलाक, जिनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रहा है तमाम ओपनर्स की निस्बत। उनकी जो करियर स्ट्राइक रेट है वो 141 की है और 26 की औसत है। दिन ब दिन ये बेहतर होते जा रहे हैं। हर ओवर के साथ, हर गेंद के साथ मोहम्मद अखलाक को T20 क्रिकेट के लिए हमने मौजूद बैट्समैन पाया, इसलिए कामरान अकमल पर इनको तरजीह दी गई है। और इमरान खान सीनियर एंड कंपनी का यही सामना करेंगे इन इब्तदाई ओवर्स में। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में माइक का सामना कर रही हैं मरीना इकबाल, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया तारिक। और आज एक ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। दो प्रॉबली बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की, KPO सेंट्रल पंजाब। और अगर नज़र डालें तो इक्वली बैलेंस्ड हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, स्पिनर्स डिपार्टमेंट। तो आज कह नहीं सकते कुछ जब तक मैच स्टार्ट नहीं होता कि किसका बलरा भारी है। यहाँ तो पहली गेंद इस 2021 के नेशनल T20 कप के फाइनल की। अच्छी डिलीवरी थी, इस बार छोड़ती हुई गई, ज्यादा पांव आगे नहीं बढ़ाया था मोहम्मद अखलाक ने। अच्छा स्टार्ट, ये अच्छी सीम पोजीशन और यही दरकार है इमरान खान सीनियर से। अप फ्रंट स्विंग मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करें। इमरान खान सीनियर खासा परेशान करते रहे हैं नई गेंद के साथ मुखालिफ टीम के ओपनिंग बैटर्स को। इन दोनों टीमों के दरमियान इस टूर्नामेंट में जो 2 मैचेस हुए, दोनों ने 1-1 जीता। इस बार अच्छी गेंद थी और कॉट बिहाइंड, एक आसान सा कैच गया विकेट कीपर के पास और ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को फ्लर्ट किया अखलाक ने। बेदिली के साथ खेला गया ये स्ट्रोक था, बिल्कुल सरसरी अपना बल्ला लेकर गए और आउट करार पाए। पहला शिकार इमरान खान सीनियर का हाफ हार्टेड शॉट थी, चेस करने चले गए, फिर शायद अंदाजा हुआ कि छोड़ना था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जबरदस्त स्टार्ट KP की जानिब से। जहां मोहम्मद अखलाक नर्वस लगे, बगैर रन बनाए वापस गए इस फाइनल में। सेंट्रल पंजाब 0 पर 1। कामरान अकमल को मैदान में उतरना पड़ा तीसरी गेंद पर। इन दिनों 1 डाउन पोजीशन पर खेल रहे हैं और एक वजह यह भी है इनको डिमोट करने की कि स्पिनर को मिडिल ओवर्स में आगे चलकर अच्छा खेल सकें, लेकिन यहाँ फास्ट बॉलर्स से पाला पड़ा। 285 मैचेस कामरान के क्रेडिट पर हैं। ये होम ग्राउंड है, होम टाउन है कामरान अकमल का, लाहौर। शानदार बॉलिंग, हवा में मूवमेंट है और ऑफ द विकेट भी इस वक्त गेंद को सीम करा रहे हैं। सीम और स्विंग बॉलिंग का बेहतरीन इम्तिजाज। शानदार बॉलिंग हो रही है, ये परफेक्ट कॉरिडोर है फास्ट बॉलर्स के लिए। अच्छी लेंथ है, अवे मूवमेंट जस्ट इनफ, थोड़ा सा अंदर आता है उसके बाद बाहर निकलता है। सही सवाल पूछ रहे हैं ये बैटर से। ये बड़ी चोट की है, इनफॉर्म बैट्समैन थे और पावर प्ले में
ये सबसे बेहतरीन ओपनर थे स्ट्राइक रेट के एतबार से मोहम्मद अखलाक। पहला रन सेंट्रल पंजाब को मिला, ऑफ द बैक फुट खेले कामरान अकमल। 152 का स्ट्राइक रेट था मोहम्मद अखलाक का। पावर प्ले में ये तमाम ओपनर्स से जाहिर है जुदा गाना था। शर्जील खान का भी 152 का था। ये डिलीवरी फौरन गेंद को कलेक्ट किया और सबने यकजा होकर अपील की। गेंद वाज़ेह तौर पर उसने अपनी समत बदली थी बैट से टकराने के बाद। क्लियर एज था, थिन एज था, लेकिन बहुत क्लियर था और अच्छी बॉलिंग है। ऐसा ही स्टार्ट दरकार था केपी को। ऊपर से विकेटें लेनी होगी अगर इस मैच में सेंट्रल पंजाब को थोड़ा सा अनसेटल करना है। सेंट्रल पंजाब के कप्तान वहाब रियाज का ख्याल था कि फाइनल मैच है, नॉकआउट है, तो दबाव के मैच में पहले बैटिंग करना बेहतर रहेगा। क्योंकि वो टॉस हार गए, लेकिन आखिर में दोनों कप्तानों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। इफ्तिखार अहमद बॉलिंग करना चाहते थे, वहाब बैटिंग। इन दिनों मरीना T20 तर्ज के मैचेस में जो ओपनिंग बैटर्स होते हैं वो ज़्यादा मूवमेंट खेलने के कायल रहे भी नहीं है, उसके आदी भी नहीं रहे। इस वजह से परेशानी होती है जब इमरान खान सीनियर जैसे बॉलर से सामना होता है उनका। बिल्कुल ऐसा है, और बैटिंग विकेट्स होती हैं तो कुछ खास मुश्किल भी नहीं होती, लेकिन एडजस्ट जल्दी करना पड़ेगा। हर ओपनर को जो है नया बॉल खेलना आना चाहिए और आता भी है। थोड़ा सा अगर मूवमेंट रीड कर लें, स्टांस अपना चेंज कर लें, गार्ड चेंज कर लें और थोड़ा सा बॉडी के करीब खेलें तो ये एडजस्टमेंट्स जो हैं वो जल्दी आप करके रन स्कोर कर सकते हैं। 2 स्लिप्स पॉइंट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और शॉर्ट फाइन लेग। ये अच्छा तरीका था, बैक फुट पर खेला, इससे लेट अहमद शहजाद ने। तो पहला ओवर बड़ा ही शानदार रहा इमरान का, 1 पर 1। दो स्पिनर हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर खैबर पख्तूनख्वा की टीम में। आदिल अमीन की वापसी हुई है, मुसद्दिक को ड्रॉप कर दिया गया और सेंट्रल पंजाब ने अपनी उसी प्लेइंग 11 को आज भी कायम रखा है जिसने सेमीफाइनल जीता था सिंध के खिलाफ कल शब। कामरान अकमल ने कल बड़ी उम्दा मिस सेंचुरी बनाई थी इसी पिच पर। अहमद शहजाद के साथ 88 रन की पार्टनरशिप में शरीक रहे। अरशद इकबाल बॉलिंग करेंगे पवेलियन एंड से। इस बार अपर कट किया, ज्यादा पेस नहीं थी अरशद इकबाल की गेंद में, इसलिए थर्ड मैन तक नहीं पहुंची। ये वो मिस सेंचुरी कल शब की जो इनकी इनिंग्स थी। जबरदस्त इनिंग्स थी, बहुत कंट्रोल्ड इनिंग्स थी। सही टाइम पे इन्होंने एक्सीलरेट भी किया और कल जिस तरह इनसाइड आउट कमांड से खेला है, लग नहीं रहा था कि बुरी फॉर्म में। स्पिनर्स को बिल्कुल लाजवाब कर दिया था, कोई भी हरबा इस्तेमाल नहीं कर पाए थे स्पिनर्स और सिंध इनके खिलाफ। जहां क्योंकि दूसरी बैटिंग थी, गेंद स्पिनर की बेहतर बल्ले पर आई, हल्की हल्की ओस थी जिस वक्त स्पिन बॉलर से इनका सामना हुआ सिंध के। हवा में खेला और बहुत मुश्किल, ये साहबजादा की पहुंच से बाहर गई और इमरान जूनियर की भी खुश नसीबी का चौका अहमद शहजाद को, लेकिन दिलेरी दिखाई उन्होंने। रिस्क आपको लेने पड़ेगा क्योंकि स्पिन सीम हो रहा है, बाउंस अच्छा मिल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी बचत हो गई। अच्छा कलाई का इस्तेमाल किया था लेकिन थोड़ा सा रिस्की शॉट था, लेकिन इस तरह की बैटिंग आपको करनी पड़ेगी, चढ़ के बॉलर्स के ऊपर खेलना पड़ेगा।
साहबजादा फरहान अच्छे फील्डर हैं, इस टीम के सबसे अच्छा फील्डर इन्हीं को करार दिया जा सकता है। इस वक्त बैकवर्ड पॉइंट पर है, पॉइंट पर कामरान गुलाम। सेंट्रल पंजाब ने लाहौर आने के बाद जो तीनों मैचेस जीते हैं, दिलचस्प बात यह कि वो तीनों उन्होंने बाद में बैटिंग करके जीते, जिसमें 2 फतुहात सिंध के खिलाफ थी, सेमीफाइनल समेत बलूचिस्तान को उन्होंने 3 विकेट से हराया था जब वहाब रियाज ने शानदार छक्के लगाए थे। लेकिन आज पहले बैटिंग करने का चैलेंज है। हाँ, आज इनके बॉलर्स को डिफेंड करना होगा जो कि डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। से विप किया, यहां पर रन्स मिलेंगे, मुश्किल होगी आसिफ आफरीदी को। 4 रन्स, बैकफुट से खेला, खासा बड़ा गैप है स्क्वायर लेग और मिड ऑन के दरमियान, और उसका खूब फायदा उठाया अहमद शहजाद ने। अहमद शहजाद को खामोश रखना मुश्किल है, लाइन कवर कर ली थी, लेंथ इतनी छोटी नहीं थी, लेकिन बैकफुट पे जाके बहुत ही कमाल तरीके से लेग साइड पे बाउंड्री हासिल की है इन्होंने। मुश्किल जो है अरशद इकबाल की कि ये इनकी नेचुरल लेंथ है, नई गेंद पर इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है बॉलिंग करने का। इस टूर्नामेंट में इनको आजमाया जा रहा है नई गेंद के साथ, यही वजह कि बैकफुट पे खेलने का मौका मिल जाता है उस हार्ड लेंथ से ओपनर को। ये बेहतर लेंथ है, सामने लाने की कोशिश करना चाहिए कि मूवमेंट मौजूद है, स्लिप मौजूद है, गली भी है। बिल्कुल ही बेहतर लेंथ है, लेकिन बॉलर्स को भी नोट करना चाहिए कि जो बैटर है वो क्रीज के बाहर खड़ा है, अंदर खड़ा है, लाइन पे खड़ा है, उसके मुताबिक आप अपनी लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग हो रहा है। अगर सही जगहों पे लेंथ को हिट किया जाए तो कामयाबी हो सकती है, और अक्सर अनसेटल करते हैं बैटर्स, कभी स्विंग को नेगेट करने के लिए क्रीज से बाहर आ जाते हैं, फिर आपकी लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आप अहमद शहजाद पे नज़र डालें तो वो अक्सर कभी बाहर होते हैं, कभी अंदर। बैट के खासे ऊपरी हिस्से पर लगी, तकरीबन फ्लैप पर, इससे अंपायर ने नॉट आउट कहा। 2 ओवर्स के बाद सेंट्रल पंजाब ने बनाए हैं 10। सेंट्रल पंजाब के 2 चोटी के बैट्समैन इस वक्त पिच पर हैं, शहजाद और कामरान। हुसैन तलत ने भी अच्छी फॉर्म दिखाई है। उसके बाद के जो बैट्समैन हैं वो ज़्यादा एक्शन में नज़र आए नहीं, और ये कज़ाफी स्टेडियम ये एक्शन का मरकज़ है, ये आरजुओं का मस्कन है क्रिकेटर्स की। अच्छा खेला, लेकिन रन एक ही मिलेगा। इन दोनों को नई बॉल से डील करना आता है, और यही हरबा है। अगर इस लम्हे ये दब गए तो फिर केपी चढ़ जाएगा इन पे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं कामरान अकमल, अहमद शहजाद, और दोनों अच्छी फॉर्म पे। कामरान अकमल ने पिछली जो इनिंग्स खेली उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा, और बड़े सही टाइम पे इन्होंने पीक किया है। तो कामरान अकमल की हम जल्दी से बात कर लेते हैं। ये 14वां फाइनल है इनका, 15वां फाइनल है दरअसल इनके T20 करियर का, और इससे पहले जो 14 फाइनल में इनिंग्स खेली हैं 282 रन हैं, औसत कम होकर 20 की हो जाती है, और स्ट्राइक रेट जो है वो भी कम होकर 117 का। सिर्फ एक मिस सेंचुरी है फाइनल मैचों में इनकी, तो इसको भी बेहतर कर सकते हैं ये आज, क्योंकि जो करियर औसत है कामरान की वो 26 की है, और करियर स्ट्राइक रेट 133 का है, वाज़ेह फर्क है। और खूबसूरती से खेला इस बार बैकफुट पंच अहमद शहजाद का, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग भी खालिद उस्मान की। अच्छा रीड किया था, वेट किया था अहमद शहजाद ने, गेंद को आने दिया पास और टोज पे बैकफुट पंच लगाया। एलिगेंस है ये एक ओपनिंग बैटर की, ये देखें
सिर्फ पंच किया था, बाउंड्री नहीं मिली, लेकिन ये शॉट काफी कॉन्फिडेंस देगा। बड़ी चालाकी से गेंद की रफ्तार आहिस्ता कर ली थी। बिल्कुल आखिरी मौके पर ये अपनी उंगलियों की हेर फेर करते हैं गेंद पर इमरान खान सीनियर। हालांकि नई गेंद पर ये ऐसा करना आसान नहीं होता। टपाल्टी मोमेंट। आज तमाशाई आए हैं ये फाइनल देखने के लिए। अभी स्टेडियम के बाहर भी लोग मौजूद हैं जो अंदर आने के लिए कोशिश हैं मुख्तलिफ दाखिली दरवाज़ों से। खासी गहमा गहमी रही है इस नेशनल T20 कप के मौके पर लाहौर में, क्योंकि तकरीबन 9 बरस के बाद T20 की वापसी हुई GSL पे। अच्छा स्ट्रोक खेला, थर्डमैन के फील्डर खासा वाइड थे। अहमद हर हालत में आना चाहते थे, इसलिए बहुत जोर से चिल्लाए। कामरान अकमल मना किया उन्होंने बहुत सख्ती से। जब बल्ले पे गेंद आ रहा हो तो बैटर यही चाहता कि हर बॉल वही खेले। अच्छी कॉल थी कामरान अकमल की। तो वैसे भी अहमद जब फॉर्म में होते हैं तो उनकी कोशिश होती है पावर प्ले में यही ज्यादा सामना करते रहें। कभी कभार थोड़ा सा पोजेसिव हो जाते हैं, लेकिन स्ट्राइक शेयर करना भी जरूरी है। बिल्कुल, ये पार्टनरशिप्स होती हैं, वन मैन गेम नहीं है, इसलिए आपको अपने पार्टनर को देख के लेके चलना होता है। टीम गेम है ये। दोनों खिलाड़ी ज्यादा जल्दी में नजर नहीं आते। जानते हैं कि पहले ओवर की निस्बत अब मूवमेंट कम होगी, दोनों के पांव बेहतर चलने लगे हैं और स्ट्राइक शेयर करने से भी आपके पांव बेहतर चलने लगते हैं, एतमाद में इजाफा होता है और वो जो एक आसाब शिकन सी सूरत हाल होती है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल, और बॉलर के लिए भी मुश्किल होती है क्योंकि हर बैटर की डिफरेंट एरियाज होते हैं और स्ट्रेंथ, इसलिए लाइन एडजस्ट करना मुश्किल होता है अगर रोटेट होती रहे स्ट्राइक। अहमद शहजाद के लिए डीप मिड विकेट पर कप्तान इफ्तिखार अहमद खुद चले गए। दूसरे डीप फील्डर इस वक्त स्क्वायर लेग पर हैं, बिल्कुल कारदार इनक्लोजर के सामने। इफ्तिखार अहमद पहले स्लिप में थे, इन दिनों कप्तान करते हैं बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग वाइट बॉल क्रिकेट में। इफ्तिखार ही आकर रास्ता रोकेंगे इस गेंद का। एक और अच्छा ओवर इमरान खान का, सिर्फ 6 रन उन्होंने दिए 16 पर 1। पहले ही ओवर में नुकसान उठाना पड़ा होम सिटी सेंट्रल पंजाब को। लाजवाब डिलीवरी थी वो इमरान खान सीनियर की, और उसके बाद से थोड़ा संभल गए हैं, तो एक्सपीरियंस बैटर्स मौजूद हैं कामरान और शहजाद, और अब मोहम्मद इमरान को जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ ये नए नए वारिद हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, इनका दूसरा सीजन है इमरान जूनियर का, लेकिन हर आंख को भाएं जहां जहां भी खेलें। अच्छा बाउंसर करते हैं, नई गेंद पर यॉर्कर कर सकते हैं। इसके अलावा बैक ऑफ द हैंड जो स्लो डिलीवरी है उस पर कई बैट्समैनों को फरेब दे चुके हैं। इनको इवॉल्व होते देखा है, PSL में भी इनको मौका मिला था
और अच्छे फास्ट बॉलर्स के आसपास भी रहे हैं, सीखते रहे हैं। इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यंगस्टर्स के लिए जहां अच्छा सीखने को मौका मिलता है। एक इजाफी फील्डर ले लिया है अब अहमद शहजाद के लिए मिड ऑन के साथ मिड विकेट भी है। और ये देखिए चौकों छक्कों की जो चाह है उसमें इजाफा होता जा रहा है। तमाशाई खासे मगन है अहमद शहजाद। जाहिर है लाहौर में बहुत से परस्तारों के फेवरेट हैं, लेकिन ये जो दोनों खिलाड़ी हैं ये लाहौर की मुख्तलिफ समतों से आए। कामरान और अहमद शहजाद बाउंसर लेकिन ऑफलाइन हो गए थे, शहजाद की पहुंच से भी बाहर थे, क्योंकि अहमद शहजाद ने अपनी जो क्रिकेट खेली है वो मिंटो पार्क पर लाहौर के शुमाल में, जबकि कामरान अकमल इसी इलाके से उनका ताल्लुक है। गुलबर्ग से मॉल टाउन में क्रिकेट खेलकर वो बड़े हुए, तो ये एक राइवलरी भी है शुमाल वालों की मगरिब वालों से। लाहौर में मगरबी जोन के कामरान अकमल और नॉर्थ जोन से ताल्लुक है अहमद शहजाद का। मशहूर ज़माना जो लाहौर की क्लब है मुस्लिम जिमखाना, इंज़िमामुल हक ने अपनी बैटिंग का आगाज़ मुस्लिम जिमखाना में किया था। उससे पहले वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग किया करते थे। जब लाहौर आए तो जो मुस्लिम जिमखाना के हेड कोच थे मियां आसम, जो ICC मैच रेफरी भी रहे, तो उन्होंने मशवरा दिया था कि आपको बैटिंग करनी चाहिए, जितनी आप में सलाहियत है। तो बैट्समैन बन गए इन्हीं क्लब से खेलते हुए। लेकिन रन्स रुके हुए हैं, बाउंड्रीज जो हैं वो आसानी के साथ नहीं मिल रही सेंट्रल पंजाब को। और ये लीजिए कामरान अकमल ने ये आवाज सुनी और उसके बाद कर दिया शानदार स्ट्रेट ड्राइव। लाजवाब बैटिंग, बिल्कुल अपने बल्ले का पूरा फेस दिखाया बॉलर को। दिल का स्ट्रोक था ये, अच्छा बैलेंस था क्रीज पे, सिर्फ लाइन पिक की थी और उसी के थ्रू बल्ले का पूरा फेस दिखाया। ओवरहिट करने नहीं गए और यही इनका कमाल है, अच्छा बैलेंस रखते हैं क्रीज पे और कोई भी थोड़ी सी लूज डिलीवरी हो उस पे बाउंड्री हासिल कर लेते हैं। पुल किया, मुश्किल होगी, इसको अलग से आए थे लेकिन नबी गुल ने गेम को जाने नहीं दिया। अच्छी फील्डिंग, दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाने पर आमादा हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि आज कैचेस नहीं गिरेंगे फाइनल के मौके पर। ग्राउंड फील्डिंग की इब्तिदा अच्छी की है केपी ने, नौजवान खिलाड़ी हैं नबी गुल। अच्छी एफर्ट थी और यकीनी चौका बचाया इन्होंने। दोनों अच्छी फील्डिंग साइड्स हैं, लेकिन फाइनल का प्रेशर अलग होता है और आज यहाँ गलती करने का मौका बहुत कम है। एक लोते इस वक्त बाउंड्री राइडर हैं लेग साइड में और अब इनकी मदद को खालिद उस्मान भी जा रहे हैं। उन्हें डीप मिड विकेट पर भेज दिया गया, थर्ड मैन को आगे लाया जा रहा है। फील्डिंग की बंदिशों का दौर है, पहले 6 ओवर्स में आप सिर्फ 2 ही फील्डर रख सकते हैं 30 गज के बाहर। लाइन से हट गए लेकिन बाल बाल बचे वाइड से। कामरान अकमल को हैरानी हुई, 8 रन इस ओवर में आए, 24 पर 1। Well, I do think there should have been maybe one more run than that, and also an extra ball. But anyway, it's been a nice little game of cat and mouse so far. No one's had any real advantage.
Oh, there's a cat looking for a mouse. Run rate is 6 to the over. It's all been pretty tight. It's a beautiful night for cricket, it's got to be said. It's a little bit cooler out there. I know you're out there for the toss, Buzz, a little bit earlier. It's a little bit cooler out in the ground than we've had the last couple of nights. Afridi now. Backing away straight away, Shazad. A left-arm spin into the attack within the power play. And right now, will he feel the heat? Both these players, Ahmed Shahzad, Kamran Akmal, very adept at playing spin. And they'll take any opportunity. A little bit down the leg side, and he's pounced all over that, Shahzad. Asif Afridi has been the main bowler for Khyber Pakhtunkhwa, and if you take him down, it'll make sure that the pressure's back on the bowling unit. Straight away, Ahmed Shahzad. Field restrictions made sure that he hit it over the top. If you look at the ability of Afridi so far in this tournament, I mean, that was a freebie from Afridi. Down the track this time. Just the one. What we've seen throughout the tournament is that Iftikhar has relied on his spinners to cramp the opposition, squeeze the opposition. He himself has bowled well. Khalid Usman also in the side. So if they can get on top of spin straight away with Asif Afridi, their premier spinner, they'll go a long way in setting a good total. But as you said, these guys don't mind the spinners. Nice little challenge coming up here. Oh, that's gone high. He's hit that pretty well, actually. Has it gone all the way? No, just the one bounce and 4 runs. That's a fine shot. Might be a cool night, but he's feeling the heat. Is Asif Afridi. Kamran Akmal just giving himself a bit of space, leg side, and extends his arms. It's on the up. It's almost off the back foot, but placed it because mid-off in the circle. He's been a real anchor for the captain, Afridi, and he hasn't bowled well so far. Now that's gone almost all the way. Now it has gone all the way. Got hands to it, but went over the advertising triangle for 6. Yeah, on the move, Kamran Akmal. Swag sweep is his favorite shot. He's gone pretty high in the semi-final. Khyber Pakhtunkhwa were electric in the field. He's slightly disappointed with that effort. Interesting this. He gave away 8 runs in his first over yesterday, Afridi. He's now given away 16 runs in his first over. That's going to mean the captain's got to think a bit. 5 gone, 40 for 1. I mean, that's a superb first 5 overs. A little bit slow initially, lost a wicket first up. Then they just started to gather momentum, and now they've had a big over, so they're now going at 8 runs of the over. Just a reminder to scan that QR code to win exciting prizes. Nicely fielded, just the one. Slightly missed out Kamran Akmal that time, finally in the circle, so the opportunity there to clip it away. Just a single. First over went for 9, Iqbal.
He's got to come back and bowl well in the second over. They decided to take him on. Has it been successful? It has, just over the top. Just over the top of Afridi. Going to come back for 2. You sense nerves. It's a bit nervy out there. That one wasn't hit in the middle. Straight away, the shouts of catch, catch, catch. He was ambling back. He didn't turn as quickly as he would normally have. Maybe a bit of a damage to his wrist. Shahzad's call was for 2. One area where Central Punjab have got the break on KP today is their average power play score is 11 runs better since moving to Lahore than KP. Their average power play is 58, so that's after 6 overs, so they're low on it, versus KP's 47. Short again, steered nowhere. Yeah, I think he wasted. Yeah, he's quite right. He wasted that shot, or that delivery, I should say. Did Kamran Akmal could have done more with that. Third man inside the circle, also a man at backward square. In fact, he's around a fine gully actually inside the circle. Could have ramped that over the top, even though it was a short delivery. Could have easily just used the pace. I don't know if experience matters in T20 finals, but if it does, Central Punjab certainly have that in their batting lineup and in their team overall. That's solid, but the protection there, just one. So they've got Hussain Talat, they've got Fahim Ashraf, Wahab Riaz, Zafar Gore's been around for a while, so Shahzad and Akmal batting right now. Kamran Akmal with heaps of experience. So if the big games, you need experience to win them, which I think is slightly overrated. But Central Punjab certainly have all that. They've ticked that box. There's only 5 runs off the over so far. Last ball. This time he goes over. That's what he wanted to do earlier. In fact, has he hit that all the way? I think he has. That's a wonderful way to finish, and not a great delivery to finish either from Iqbal. 6 gone, 49 for 1. Wait. 50 up, 51 for 1 it is. That's the end of the power play. So it's not as heavy as they normally score and have been scoring since coming to Lahore. I see there's a rag out of the pocket. I wonder if there's a little bit of moisture around. Maybe not, just handing it off. Let's hope we don't have any moisture. We haven't had moisture for a while in the night games, which is good news to the bowlers. It's a good shot to finish the over. Yeah, short ball and stayed with the shot. Mehman Shahzad, terrific shot. Afridi's out. Usman has been introduced into the attack. Just on that dew, which we haven't had for a few nights, the ground staff have been spraying again. They sprayed today at 11 o'clock. It's a light coating of wax that goes on the blades of grass in the outfield. It's something that was a spray initially was introduced for golf courses and has been adapted a little bit for the grass that's used in cricket grounds. Good boy, good boy. The idea is that any dew that forms, it just trickles down the wax coating into the soil.
And just to be clear, it's not the wax you and I use on our hair. It's something different. Well, you use, yes. Sweep, he loves the sweep. We've got our Osaka question of the day coming up. What have we got? Which Pakistan cricketer has scored the most centuries across T20s, one internationals and tests? Answer this question. Kamran Akmal prowling. Likes to go with the slog sweep or inside out. There's a change in feel as they're now 3 men square saving the single and the extra cover on the fence, so they're protecting that inside out shot. Good ball, good ball. Yo, bowler and do that. Both these batsmen will know that if they get out in the 20s or the 30s, it hasn't done their team a great deal of good. They're experienced. They will know that the big scores, the 70s, the 80s, they're the ones that make a big difference, particularly in a final. That wins games in a final. Yeah. Very good, Awan. Very good, Awan. Another singles. That's tidy start from Usman first up. 6 off, 7 gone, 57 for 1. No doubt you've enjoyed watching this National T20 Cup. We certainly have enjoyed bringing it to you. There's a look at the television on the streaming, PCB YouTube channel, PCB Facebook page, Pakistan, rest of the world. That's the high quality pictures, high definition, crystal clear, and you can watch that all over the place. We've had plenty of messages from around the world, actually, people logging in and watching. It's been a lot of fun to work on. Asif Afridi changes ends. Now with 2 right-handers. Left arm spin from both ends. Iftikhar holding himself back. Normally he would come into the attacks straight away after the power play. But not so today. This is his favoured end, actually, Afridi. One's kept a little bit low. This is the end where he's done most of his bowling from since we've moved to Lahore. It's nicely bowled. He's decided to come a little bit quicker through the air, I think. That one at 91 k's per hour. Just to try and shut this down as much as he can after that first over, going for plenty. Giving himself some room on the bounce. Plenty of crowd. It's the final. And you expect people flocking in. Bottom end of the bat might have saved him. Wasn't a clean hit. Had to reach for it. Yeah, you just sense that something's going to happen. They've tried to take him down this over. Hasn't worked. Last delivery coming up. Ahmed Shahzad looking around. Almost taking out his partner. In the end, it's just 1. So it's tidy stuff from Afridi. 5 from that over. 62 for 1.
भाई चलो 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 बॉयज 2 मिनट शांत विदावा का बुको यार 62 पे एक खिलाड़ी आउट और वो खिलाड़ी आउट हुआ था मैच के पहले ही ओवर में अखलाक। उसके बाद से अहमद शहजाद और एक नए कामरान अकमल होम सिटी सेंट्रल पंजाब को निकालते हुए उस परेशानी से जो शायद फील हुई होगी विकेट लूज करने के बाद मैच के पहले ही ओवर में। फाइनल है ये। आज हर वो चीज जो आपने इस टूर्नामेंट में पिछले 32 मैचेस में की हो उसकी अब वैल्यू पास्ट में चली गई। अब मैटर करता है कि आप आज क्या करते हैं, आज आप किस माइंडसेट से उतरे हैं, आज आप कौन सी टीम बन के उतरे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आप प्रेशर को कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो आपको जीत दिलाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए आज पहली विकेट गिर गई थी सेंट्रल पंजाब की और उन्होंने कोई स्कोर भी नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया क्योंकि माइंडसेट उनका बड़ा अच्छा था और वो दबे नहीं उससे कि विकेट गिर गई। रन्स मिलेंगे यहाँ पर। तेज आउटफील्ड है ये और अगेन जीत गई रेस। मोहम्मद इमरान नहीं रोक सकते, इस पे शिकायत बनती नहीं है खालिद उस्मान की। देखिए अच्छी स्वीप शॉट, 4 रन्स मिले अहमद शहजाद को। डाउन द नेक्स्ट साइड बॉल थी और उसका पूरा फायदा उठाया। इस वक्त सेट हो चुके हैं, नजरें उनकी सेट हैं। ओह सही आया नहीं बल्ले पे, वरना अहमद शहजाद जा रहे थे फुल टॉस को मारने के लिए लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से। यकीन है उनको बल्ले को देख रहे नीचे लगा। ये वो स्वीप शॉट अच्छा आए बॉल पे, पूरी कनेक्शन नहीं हुई लेकिन स्वीप ऐसी शॉट है कि अगर जरा सा भी बल्ला लग जाए तो 4 रन मिलते हैं आपको। आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। 2 बंदे लिए हुए हैं डीप में ऑफ साइड पे, वाइड किया हुआ है काफी लॉन्ग ऑफ को इस शॉट के लिए, लेकिन इस बार कामरान ने बोला मैं स्ट्रेट खेलता हूं। ये जो इनका फेवरेट जोन है कामरान अकमल का, एक्स्ट्रा कवर की जो बाउंड्री है लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट टारगेट करते हैं तो लॉन्ग ऑफ बहुत वाइड है और इसी तरह से उनके ज्यादा दूर नहीं है दूसरे फील्डर उनके जो कि डीप कवर में है। और जब ये आते हैं अहमद शहजाद स्ट्राइक पे तो वो फील्डर स्क्वायर हो जाता है, ऑलमोस्ट स्वीपर कवर। उनकी स्ट्रेंथ है वो शॉट जो इनसाइड आउट लगाते हैं कवर के ऊपर से कामरान, और जाहिर है ऑपोजिशन के कप्तान को ये पता है तो फील्ड प्लेसिंग उस हिसाब से करते हैं, इसलिए शायद जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं अभी इतने कामयाब नहीं हुए उनके खिलाफ। देखें उनको ये उस जोन में बॉल कर रहे हैं कामरान को ताकि वो शॉट के लिए जाएं और कैच का चांस बने, लेकिन जब आसिफ आफरीदी सर्कल में गेंद कर रहे थे लेफ्ट आर्म स्पिन कामरान को तो उन लोगों ने मिडिल लेग स्टंप को टारगेट किया हुआ था ताकि वो एक्स्ट्रा कवर पे चार्ज ना कर सकें और डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट फील्डर ले लिया था। प्लानिंग के साथ आए हैं, अच्छी मैन टू मैन मार्किंग कर सकती हैं ये दोनों टीमें, बड़े अच्छा इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बड़ा बहुत सारी चीजें जो हम आप इसमें पिन पॉइंट कर सकते हैं। ओवर हो गया अभी 70 बल्कि इनफैक्ट 71 पे 1। देखिए आप जब ऐसा स्टार्ट दे दें आपको टॉप ऑर्डर के या टॉप 3 में कोई बैट्समैन तो फिर आप फ्री हैंड दे देंगे हुसैन तलत को, फहीम अशरफ को, कासिम अकरम, सैफ बदर को कि वो आके फिर बड़े शॉट्स लगा सकें। तो हम यही बात कर रहे थे कि इनके पास इतना मवाद है 11 में दोनों टीमों में कि किसी भी स्टेज पे गेम की वो स्पेयर हेड का रोल कर सकते हैं। आसिफ आफरीदी सिर्फ कंटेन नहीं करते, विकेट्स लेते हैं। फास्ट बॉलिंग में जब आएंगे तो इमरान खान सीनियर करेंगे, इसी तरह सेंट्रल पंजाब में भी जब स्पिन आएगा तो कासिम अकरम टेक ओवर कर लेंगे, लीड करेंगे बॉलिंग अटैक। फास्ट बॉलिंग आएगी तो इनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं इंक्लूडिंग कैप्टन।
वहाब रियाज। और अगर ये चाहें तो आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकते हैं, पिंच हिटर भेज सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्रेडिट है इन दोनों को कि पहली विकेट बगैर किसी स्कोर के गिर गई, फिर उन्होंने अच्छा पावर प्ले खेला 51 रन का, और अब ये स्टेज आ गई, ये डोमिनेट कर रहे हैं। सीधा खेल दिया है और गेंद बीट कर जाएगी फील्डर को। खालिद उस्मान फिर भी दूर थे, हालांकि इतना वाइड नहीं है लॉन्ग ऑन पे वो, लेकिन ये दोनों जो बैट्समैन हैं उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि बॉलर के ऊपर से ज्यादा बेहतर है खेलना। कामरान का बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, ये बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं, शानदार शॉट 6 रन के लिए, बिल्कुल सीधी तीर की तरह ये गई और मजा आ गया। चेक करते हुए थर्ड अंपायर आया कि बॉल डायरेक्ट लगा है रोप्स को ऑन द फुल या फिर ये बाउंस हुआ है। पहले मेरे ख्याल में जो दिख रहा है उस पर तो 6 होना चाहिए। बाउंड्री की स्कर्टिंग जो है उसको डायरेक्ट जाके इंपैक्ट किया है बॉल ने। यहां से ज्यादा बेहतर हमें आइडिया हो गया कि 6 है। रन रेट बढ़ते हुए अब हो गया 8.36। पार्टनरशिप हो गई 78 की 55 गेंदों पर। ओ अपिश, लेकिन बचत हो गई, पहले बाउंस पर गया गेंद। और कामरान को अगर आपने काबू करना है तो उनको जल्दी आउट करना चाहिए। एक दफा वो सेट हो जाते हैं, 25, 22, 25 पे पहुंच जाते हैं तो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। एज ए बैटिंग यूनिट भी आपने टारगेट किया हुआ है। अगर आसिफ अच्छी गेंद कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट अननेसेसरी चांस ना लिया जाए। छक्का दे दिया है पहली बॉल पे ये वाला, उसके बाद स्ट्राइक रोटेशन। दो की कॉल, लेकिन होगा नहीं ऐसा। थोड़ा सा अगर इनको कंटेन किया जाए, एक ओवर 3-4 बॉल्स अगर डॉट बॉल्स कर दी जाएं तो फिर गलती निकल सकती है और कामरान या फिर अहमद शहजाद दोनों आउट हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा ओवर चाहिए जो कि टाइट हो और डॉट बॉल्स हों उसमें। डॉट बॉल रहेगी। 9 रन हासिल हुए इसमें, 80 पे एक खिलाड़ी आउट, 10 ओवर मुकम्मल। इस तरह से स्कोरिंग रही है फाइनल में होम सिटी सेंट्रल पंजाब की। 29 सिंगल हैं, 6 चौके 3 छक्के लगा चुके हैं और 4 बार 2 रन हासिल किए हैं। बड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। डॉट बॉल्स 18 है इसमें। जो शुरू का प्रेशर आया, पहले ओवर में विकेट गिरी। फैसला बुरा नहीं है कि हर ओवर की पहली बॉल पे अटैक किया जाए ताकि बॉलर डिफेंस पे चला जाए। हाँ, फाइनल का प्लान कुछ और ही होता है। देखें, विकेट गिर गई फिर भी वो रहे विकेट पे। उनको पता है कि इम्पोर्टेंट मैच है ये। अपिश शॉट थी, कैरी नहीं की फील्डर को, लकी रहे और सिंगल्स लेते रहे ताकि एक सिलसिला चलता रहे। और जब बुरी बॉल मिली तो उन्होंने चौके और छक्के भी 3 लगाए। तो एक प्लान है और अच्छा ये स्टेबल टेम्परामेंट दिखाया आज। और ये अच्छा शॉट है, टाइमिंग बहुत उम्दा है इसमें, बहुत ही उम्दा शॉट। कामरान अकमल का बैकफुट पर जाकर शानदार शॉट खेला है। आज अलग ही है कामरान अकमल और शहजाद की पार्टनरशिप। वही हरबा अपनाया हुआ है जो सिंध को ले गया था। जी हाँ, बहुत अच्छी शॉट लगाई, क्रीज में रहे, वेट किया और स्मैश कर दिया 4 रन के लिए। आला शॉट। टू मैनी चांसेस एक ही ओवर में। इस बार गेंद हल्का सा स्पिन हुआ और बीट कर गया बल्ले को कामरान अकमल की। लेकिन जो काम था, जो जिम्मेदारी दी गई थी कामरान अकमल को तीसरे नंबर पर, वो उन्होंने किसी हद तक पूरी कर दी। जी हाँ, एयर में बीट किया। बहुत एयर दी नहीं थी लेकिन
थोड़ी सी एयर देकर बीट किया, बाहर निकाला और स्टंप कराया। अच्छी बॉलिंग, गुड थिंकिंग। आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन से इफ्तिखार के प्रेशर थोड़ा कम हुआ। 42 बना गए कामरान अकमल 85 पे 2। एक और बड़े इंपॉर्टेंट बैटिंग लाइनअप के मेंबर हुसैन तलत होम सिटी सेंट्रल पंजाब के लिए तीसरे नंबर पर आज, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन अब मिल जाएगा। बाएं हाथ से ये बैटिंग करते हैं। इनके पास इस वक्त इन पे प्रेशर नहीं है। दोनों बैट्समैन जो खेल रहे थे 42 पे, आप 85 पहुंच गए हैं हाफ वे मार्क पर। अब आप कोशिश कर सकते हैं कि अगले जो ओवर्स हैं बाकी मांदा ओवर्स उसमें 100 करें, 95 90 करें। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर विकेट्स यहाँ पर 1-2 इन्होंने गिरा दी तो अपने ऊपर खुद ये प्रेशर ले आएंगे। यहाँ पर जरूर टेस्ट होगा टेम्परामेंट का, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं पिछले मैचों में भी सिचुएशंस रीच नहीं करते और विकेट से अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं, गिरा के अपनी विकेट्स। तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए। इन दोनों की रनिंग भी बहुत तेज है, तो वो चलते रहेंगे, इस मोमेंटम को कैरी करने में आसान होगा। और आज सिलसिला भी अलग है। इससे पहले डॉट बॉल परसेंटेज मैचेस में 34% थी और फाइनल में 29 हो गई, तो कम हो गई हैं डॉट बॉल्स। सत्तासी, 2 खिलाड़ी आउट। सत्तासी पे 2, 9 ओवर्स का खेल बाकी है होम सिटी सेंट्रल पंजाब की टीम का। और हमें अगर अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो केपी ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। कप्तान खुद आए हैं गेंद करने के लिए फाइनल में। अच्छा टर्न हासिल हुआ। बड़ी अच्छी बॉल थी ये। अकलमंद बॉलर हैं इफ्तिखार, थोड़ी एयर भी देते हैं, टर्न करने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा शॉट खेला है, प्रोटेक्शन मौजूद है, लेकिन जब शॉट खेला तो बड़ी अच्छी टाइमिंग थी इसमें। इफ्तिखार का बड़ा अच्छा वो मेजर रोल रहा है, बल्ले से लीड कर रहे हैं इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा को। कप्तानी का रोल बड़ी अच्छी से और बड़ी जल्दी समझ लिया इन्होंने जिम्मेदारी उठाई जब मोहम्मद रिजवान चले गए वर्ल्ड कप स्क्वाड में। वो जो इंटेंसिटी है वो कम नहीं होनी थी। हाँ ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे थे रिजवान और उनको रिप्लेस किया और जल्दी सारी अपनी जॉब को समझा। और 300 से ऊपर इन्होंने रन बनाए हुए हैं बल्ले के साथ, विकेटें भी ली हुई हैं। अपने ट्रूप्स को भी बड़ा अच्छा जो ये है कंट्रोल में रखते हैं। सारे लड़कों को हर एक का रोल समझते हैं, अपना रोल समझते हैं। तो ये बहुत एक खुशी की बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। अटैक किया कप्तान को, गेंद हवा में है और चांस है विकेट का लॉन्ग ऑफ पर और आउट कर दिया। 2
दोनों इनसेट बैट्समैन आउट हो गए और आप देख सकते हैं कि कितना प्रेशर रखा था अहमद शहजाद ने खैबर पख्तूनख्वा पे कि उनकी विकेट लेने के बाद एक सुकून का सांस लेंगे। ये देखिए फ्लाइट दी बॉल को बाहर निकाला अहमद शहजाद को और आउट किया उनको लॉन्ग ऑफ पे। अच्छा कैच, कंफर्टेबल कैच लिया और ये अच्छी विकेट। और यही बात मैं कह रही थी कि विकेटें बड़ी जरूरी हैं, अब प्रिजर्व करना, आउट होना इस वक्त सही नहीं होगा। 44-36 गेंदों पर अहमद शहजाद। सैफ बदर, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया कि विकेटें संभाली जाए। ये देखें विकेट किस तरह अहमद शहजाद ने अपनी विकेट गंवाई। फरहान ने बहुत अच्छा कंफर्टेबल कैच पकड़ा, लेकिन अब ये ज़रूरी है कि और विकेटें ना गंवाएं क्योंकि अब ये प्रेशर इन पे आ सकता है अगर इस वक्त मज़ीद एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी और आउट हो गए। तो ये सिचुएशन रीड करने का टाइम है और समझने का टाइम है। देखिए अगर आप 6 विकेटें लूज करें या 9, आपने करना है 180-85। ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ द मार्क हो गए सैफ बदर सिंगल के साथ। ओवर भी मुकम्मल हो गया। 91, 3 खिलाड़ी आउट 12 ओवर्स के बाद। I said earlier today that I thought that the ideal situation after 10 was 80 on the board for no more than 2 down. They were 80 for 1, so I thought they were going beautifully. And then suddenly that partnership was done. 85 off 61 was a great partnership between Kamran Akmal and Shahzad. And then they've lost another quick one, so they've got themselves in a little bit of a spot here. Bada, 23 years of age, just a youngster, best of 49 not out. They've got some batting to do. Run rate at just on 7.5. Conditions are really good for batting. 2 wickets for 6 runs on the last 10 balls. This happens in T20 cricket. It's how you react to that, though, that counts. That's fine. And it's also 4. That's an unforced error. You don't need that. Imran Khan Senior down there at the third man. Just went through his hands. Well, Central Punjab will take it. The fielding was sensational last night. KP has managed to break down the momentum. The run rate in power play was 8.50. After power play, it went down on 6.66. It's nicely bowled, but a good punch down the ground. Only the one, though. These two can bat. Now what's important is just keep looking for that boundary option in every over and keep rotating the strike. It's a perfect situation. That's what they've got to do. You're right, Marita. It's a perfect situation for KP right now. These guys have just arrived. 2 of them have just arrived. They're fresh. Hussain Tullott's been in really good nick.
He's played some superb shots, or superb innings, I should say, in this tournament. So he should feel comfortable on the surface. That shouldn't be any issues for him. But they need to play well together. That's going to be key. That's a sign of a man in form, just running it off the face, coming back for the second as well. And that's really good running, good aggressive running. That's what you like to see. Brilliant from Hussain Talat. That's exactly what you need. Just a great touch, just playing it very late. Got it fine and ran quickly. You know how important these doubles are, especially right now in the middle overs. I actually liked the way he had a little hesitation when he touched down at the non-striker's end and had a bit of a look. Had to look past the bowler, I think, actually, and then he decided to head down and go. Good stuff. That's leg side, and it is going to be called. No, it's not going to be called. He moved early. I think that's fair enough, actually, from the umpire. Yes, that's smart bowling from Mohammad Imran. Just taking the pace off totally. Never arrived. Slow delivery. Has to get the skates on again, but it's fine, no problems. So what have they accumulated here? Without trying too hard, they've got 8 off this over. That's good. Some grip work being done. You know how batters are. They want everything perfect on their bat. Oh, some are superstitious. Qasim Akram, he did a terrific job with the ball. He's going to have to do some batting this time around. Some of them are crazy superstitious. I'm going to give an example shortly. One ball left in over number 13. There's the next 3. Easy single. So that brings up 3 figures. 100 on the board for the loss of 3 and 13 overs gone. Now let's make sure you create an account at shop.pcb.com.pk and order through the official PCB merchandise store now. Get a chance to win a Pakistan cricket team shirt signed by the Pakistan squad. Deadline is the 15th. And 5 lucky winners be announced through the PCB portals after that. That'll be a nice thing to have, signed by the Pakistan squad. Hashtag wear your passion. Has that gone all the way? No, it hasn't. That's a wicket. Iftikhar. Gee, he's done a terrific job with the ball. Taking the responsibility on himself, and you can tell by his reaction. He knows what he's doing. He's in the business. Got the elevation, but not the distance this time. Skipper is absolutely delighted. I'm not surprised. They are chipping away well now at Central Punjab. He goes for 7, 100 for 4 now. Long chat.
Well, I'm not surprised, because they've got themselves in a tangle here after such a good start. 1 for 85 they were. Here's the golden arm. Would have liked to hit it flatter. He thought he got it over, but no. There's the man, perfectly placed. Another one goes down for Central Punjab. From last 43 balls, they got 49 runs and 4 wickets. That's the issue. He looks so determined today, Iftikhar. He has been a star with the bat, we know that. He's number 3 on that list. There's the trophy they're playing for. Now, talking about superstitions, now there's one player I just want to talk about, Neil McKenzie. He's the king of superstitions. Now, here's a couple of things for you. Neil McKenzie, whether he's playing for South Africa or provincial, used to sometimes, before a big game, sleep with his bat. He used to always have his the toilet seat down in the change room when he was batting. Someone was assigned to make sure that happened. He used to also pick up an imaginary piece of paper around the place and throw it off the pitch. He used to ward away evil spirits at the end of each over with his bat around the stumps. I mean, the wicketkeepers just start laughing in international games. I remember Adam Gilchrist just laughing at one stage. He only ventured, if he only scored 10 runs, he would only venture 10% of the way down the track. When at the end of an over, his partner had to come 90% of the way down to talk to him. Often the partners didn't even make the effort. And when he was waiting to bat, he used to make sure all his pads and bat and gloves are all lined up in a line from him all the way to the square, like this, in a line, straight from that cup to the square. There was one game he was playing, a provincial game. He went to the gents, and his teammates played a trick on him. They picked up his bat, and they hid it from him. He came back, his bat was missing. He had a fit. For 20 minutes, they didn't tell him where his bat was. They eventually said, right, we're going to show you. So they took him to the back of the change room. They gave him a ladder. They taped his bat to the ceiling. He had to climb up and get his bat from the ceiling. As he got down, a wicket fell. He strode out to the middle, got 170 for the rest of the season. He taped the bat himself to the ceiling before he batted. Well, finally he found the way to score runs, but that is a lot of work to be done off field. And there's more, believe me, there's more. That's all I got time for tonight. No doubt he's the king of superstitions. Right, 101 for 4. That's what they're going to have to do now. They're going to have to try and break the shackles and play the odd little unorthodox stroke, I suppose. Yeah, he needs to go on. He cannot just wonder about the other end. It's a crucial role to play, Santalat. That's pretty close. The line's good, and up goes that finger. They've lost another one. They've now lost 4 wickets for 32 runs in the last 30 balls. This is bad news for Central Punjab. What a day Iftikhar is having. Probably night. But have a look at that. 3 wickets, just 5 runs given. Firing it in. That wasn't the length of Santalat. And he paid the price. There's the reaction. Wow, the skipper, he's done an extraordinary job here. We normally are just raving about the way he bats. He's been picking up wickets, kept it nice and tight. 3 for 5. Talat is the last. He goes for 6. 101 for 5. Tell you what, there's some serious trophies there. One big one right in the middle. There's a team that's eyeing it at this moment with the scorecard as it is right now.
Mohammad Faizan. Now he's got to do some work. Kazim has faced one ball and he's just arrived. Listen to the buzz from KP at the moment in the field. That was a big wicket. And off he goes. And up goes the finger. Well, Central Punjab definitely did not plan against him. And that usually happens. It's a little bit leg side, so they're going to have to chase this one down. A couple of runs, the result. What an over. Extraordinary over. A couple of wickets and also 3 runs. 103 for 5. Over mark. There were 81 for 1 with the 10 over mark. Suddenly it's gone south. Quite interesting at the end of that over. 4 of the KP players got together and had a little bit of a discussion about who's going to be bowling next. They've given Afridi a go. He's going at 10 at the moment. This is his last over. I think it's the perfect time to bring him in too. These guys cannot take a risk. Just keep tightening that screws around Central Punjab. But they will be happy. Got some tea, cricket, enjoying the weather out there. A little bit of flight that you can do when you've got 2 new batsmen. You can just toy with the batsman a little bit. A little bit of flight, a little bit of speed through the air. Go back to the normal routine you used to bowling with in the previous games when you've been successful. That's good captaincy of breaking in spinners. Just getting through these middle overs quick and clean. 153 is prediction. They're going to have to go some to get there. Actually, they've been playing in the last 20 minutes. He's found his right speed now, I think, Afridi, and he's bowled this over superbly. He's just got 1 ball to go before his spell's done. He'll be disappointed in his first 3, but he'll be happy with the last one. Not apparent sign of any dew out there. Seems pretty okay. I haven't seen any of the players get rid of that or grab that white rag. The face towel, probably. Oh, and the back foot. That's what he wanted to do, upset him with his length. He almost did. End of the over, tidy. 4 from it. 107 for 5, 15 gone. Straight away look at Iftikhar. 3 for 5. 2.5 runs the over. That's magnificent. Hard down the ground. Usman is into the attack now. The only man has been expensive is actually Asif Afridi. The rest have been really good.
So in last 2 overs, they've got 7 runs and 2 wickets down. That has been the story so far of this tournament for most of the teams. The middle overs, the middle order, struggling to get going. That was quite interesting. That ball on the ground then. Oh, that's a hoik. That's no more than a hoik. That ball was driven along the ground. It came back and it went to Iftikhar, and he got the cloth out. Oh, look at this. That's a poor shot. That's a desperation shot, actually. He got his face cloth out and dried the ball after that. But they're not having any problem, actually, with the ball at all. Spinners are giving it a tweak. Yeah, being a captain, he doesn't want any sort of a disadvantage. They've been really good with the ball so far. Yeah, I'm sure it's just pretty precautionary at the moment. Run rate has dropped to 7 now. Only the one, the leg bite. Just be sensible, keep rotating the strike, pick your area and pick your ball, or rather baller. They cannot just stroll around like this. Need runs on the board. Yeah, there's only one team buzzing now, and that's KP. Central Punjab is going through the motions at this stage. Got a bit of action on that. It's in the air. It's going to be on the bounce. All that for just 1. They've got to try and get boundaries. Otherwise, they're going nowhere. That's what they've got to try and do. Anything they recognise and think they can put away, they must try. Wasn't a bad option. Cha-cha in the crowd. That is another very good over. They're stringing them together now. 4 from it, 16 gone. Nelson on the board for 5. कल शाम की तरह आज भी सेंट्रल पंजाब की एक ही बड़ी पार्टनरशिप हुई है। अहमद शहजाद और कामरान अकमल के दरमियान जो 85 रन बने थे, कल 88 रन बने थे। और जो ज़्यादा फिक्र की बात है कि कोई और खिलाड़ी डबल फिगर में भी नहीं आ सका, और अगर यहाँ चांद तक जाना है तो ये बहुत गैर मामूली परवाज़ करना होगी। फैज़ान को हम PSL में देख चुके हैं, कासिम अकरम में सलाहियत मौजूद है, ये अच्छे बैट्समैन हैं कासिम अकरम। और ये रियाज साहब जो क्यूरेटर हैं, इस वक्त पाकिस्तान में इनकी बहुत मांग है, इनको मुख्तलिफ सेंटर्स पे मदऊ किया जाता है, मुल्तान में होते हैं इन दिनों। और इसे पुल किया, नया शानदार छक्का, कासिम अकरम बैकफुट पर गए और उनके पाव 12 हो गए इस लेंथ से। तेईस गेंदों बाद पहली बाउंड्री आई है और मारा भी है तो उस बॉलर को जिसकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं इस टूर्नामेंट में, इमरान खान सीनियर को। बड़ा शानदार शॉट क्रीज में डीप जाकर। आपने जिक्र किया अभी कि सिर्फ पार्टनरशिप आई अहमद शहजाद और कामरान अकमल की। सैफ बदर इस बार भी कुछ खातिर खा कुछ नहीं कर पाए टीम के लिए। बड़ा अहम रोल था उनका मिडिल ऑर्डर में, अखलाक बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। लेकिन यंगस्टर कल गेंद के साथ और अभी बल्ले के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए सामने वाली टीम को। एक बार फिर हवा में खेला, गैप पे खेला, यहाँ पर दूसरा रन बनना चाहिए। जल्दी जल्दी दौड़े, उल्टे कदमों ही वापस आ गए थे कासिम अकरम, इससे रन मुकम्मल हो गया। एक और खूबी है जो इनको मुमताज़ बनाती है दूसरे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से,
पिछले सीज़न में सेंट्रल पंजाब की टीम ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था कासिम अकरम पर। हालांकि शुरू के दिनों में इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था इनकी बैटिंग से, लेकिन क्योंकि इनको मुख्तलिफ मौके पर मैचेस खिलाए गए, कायदे आज़म ट्रॉफी के, नेशनल T20 कप के, पाकिस्तान कप के, और उसी का सिला मिल रहा है टीम को। और ये गेंद थोड़ा जल्दी आ गई, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कासिम। गेंद बल्ले के ऊपर लगी। किसी भी हालत में सेंट्रल पंजाब को इस बात का पूरा एहसास है कि 180, 185 एक स्कोर ऐसा होगा जिससे प्रेशर डाल सकते हैं। उससे कम में अपने ऊपर प्रेशर लेकर बॉलिंग करनी पड़ेगी। देखिए ओस है तो गेंद जो है वो कई बार स्किड करके आती है और एक रफ्तार से भी नहीं आती इस पिच पर। लेकिन ये कोई अच्छा असर नहीं है सेंट्रल पंजाब की जो स्पिनर्स हैं, खासतौर पर उनके लिए। कासिम अकरम खुद भी ऑफ स्पिन करते हैं। और पुल की अच्छी आवाज आई है। गेंद जाएगी शुरू से आखिर तक। ये अच्छा ओवर है सेंट्रल पंजाब के लिए। अब तक 13 रन दे चुके हैं इमरान। बहुत ही खराब लेंथ थी, बहुत टाइम दे दिया बैट्समैन को। आप देख सकते हैं बाउंस करना चाहते थे लेकिन इतना बॉल ऊपर आया नहीं। बिल्कुल आराम से उनकी आंखों के सामने गेंद था और इस पे पेस भी कम थी, 121 किलोमीटर। इसको मारने में और प्लेस करने में कोई परेशानी नहीं हुई कासिम अकरम को। 14 बना चुके हैं 9 गेंदों पर। मुश्किल ये है इमरान खान सीनियर की कि वो ज़्यादा गेंद की वजह से वो जो इनके कटर ग्रिप करते हैं पिच पे वो नहीं हो रहा, और वही इनकी कामयाबी का राज होता है। ये जहां तक डेथ ओवर्स में बॉलिंग का ताल्लुक है, महंगा ओवर है। छक्का लग चुका है, चौका लग चुका है, अभी 2 गेंदें बाकी हैं। और फिर अच्छा टाइम किया, 1 रन मिलेगा फैजान को। जो आकिब जावेद हैं लाहौर कलंदर्स के जो हेड कोच हैं और डायरेक्टर, वो इनको बहुत हाई रेट करते हैं। ये मीडियम पेस बॉलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि शुरू के दिनों में लाहौर कलंदर्स का ये ख्याल था कि अब्दुल रज़ाक जैसा रोल प्ले कर सकते हैं। 2 in 1 है ये। जी हाँ, PSL में भी नजर आए थे, उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रही है इस टूर्नामेंट में भी। जब हेड कोच अब्दुल रज़ाक हैं तो फिर तो और भी अच्छा है। थोड़ा बहुत ही अपना इनके ऊपर अब ऑफ कर सकते हैं, नो हाउ जो है गेम की। एक और निहायत आला शॉट। ये गेंद भी सर पर गई। एक बार फिर स्लो डिलीवरी थी और इसका खूब फायदा उठाया नौजवान कासिम अकरम ने। इनिंग्स का सबसे महंगा ओवर, 20 रन इमरान ने दिए 131 पे 5। T20 के मैच में अगर एक ओवर में 20 हासिल हो जाएं तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैच पलट जाता है। कोई एक आध ओवर ऐसा मिल जाए तो जो प्रेशर आपने पिछले 5-6 ओवर से बना के रखा हो वो आप ऑपोजिशन के हवाले कर देते हैं। इफ्तिखार खासे गुस्से में थे इमरान खान सीनियर से। क्या शॉट खेला है, गेंद की लाइन के अंदर आया और बहुत ही उम्दा तरीके से। फिर शॉर्ट बॉल आई, फिर इन्होंने पुल किया 4 रन के लिए, और ये आखिरी शॉट था। बहुत ही उम्दा तरीके से अपने आप को जल्दी ले आते हैं गेंद की लाइन के अंदर और सबसे सीनियर बॉलर को उन्होंने प्रेशर में डाल दिया। ये गुस्सा था इनका कि एक लेग स्टंप लाइन क्यों पकड़ी हुई है। आज इन खुद के लिए, कप्तान के लिए ये अच्छी रात है। 3 विकेटें हासिल की हैं। कल बैटिंग से मैच जितवाया था। हालांकि अगर आप देखें तो सच लेग स्टंप लाइन पकड़ी नहीं थी। शफल बहुत किया है कासिम अकरम ने और ऑफ स्टंप से इन्होंने मारे हैं वो छक्के जाके। आज हुसैन तलत भी कुछ खातिर खा
कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए स्कोरबोर्ड में, लेकिन सबकी जगह से कवर कर रहे हैं इस वक्त कासिम अकरम। 20 बनाए हैं 10 गेंदों पे, 200 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के लगाए हैं। फैजान का आपने जिक्र किया, लेकिन इस वक्त जो अब्दुल रज़ाक की याद है वो कासिम अकरम दिला रहे हैं। खास बात यह है कि इनके पास बहुत ज्यादा वक्त है, इस आसानी से शॉट्स खेलते हैं। ये गेंद खाली गई। क्या रोल होना चाहिए अगर आप अपने साथी को देख रहे हैं कि वो इतनी जबरदस्त पावर हिटिंग कर रहा है, तो क्या बेहतर है कि आप उसको स्ट्राइक दे दें? और एक रन तो बड़ी आसानी के साथ दस्तयाब है। जिस ये एंगल से आ रहे हैं गेंद करने के लिए, ये देखिए मिड ऑफ के ऑन साइड में शॉट फाइन लेग के अलावा कोई फील्डर नहीं। ऑफ साइड में भी बड़े गैप हैं, पॉइंट कवर मिड ऑफ में। और इस बार गेंद चली है मिड ऑन की तरफ और आसानी के साथ कैच ले लिया गया। टाइम करना चाहते थे फैजान, आदिल अमीन ने अच्छा रनिंग कैच लिया। आइडिया बुरा नहीं है, जब आप 18वें ओवर में आ जाएं, 5 विकेट्स आपके पास हो तो आप चांस लेंगे। शॉट था, फॉलो थ्रू इतना नहीं था बैट का, और बिल्कुल लाइन के पास बाउंड्री के आदिल अमीन ने कैच किया इसको और एक और कामयाबी दिलवाई। ये प्रेशर है जो रिलीज हो रहा है विकेट के गिरने के साथ। 131 पे छठी विकेट गिरी है होम सिटी सेंट्रल पंजाब की। मोहम्मद फैजान 8 बना के आउट। वहाब रियाज टीम के कप्तान, ये बैटिंग के महाज पर पहुंचे हैं। इन दिनों अच्छी बैटिंग फॉर्म में हैं, अच्छी बॉलिंग फॉर्म में भी हैं। और हालांकि औसत सिर्फ 14 की ही है, लेकिन ये मैच विनर हैं। इन डेथ ओवर्स में ये कुछ भी कर सकते हैं, खासतौर पर जब सेंट्रल पंजाब की टीम रन चेज कर रही हो तो इनकी हिफाजत बढ़ जाती। इस बार आहिस्ता गेंद थी और कैच आउट हो गए। तो 2 लगातार स्लो डिलीवरीज पर 2 सेट बैट्समैन को चलता किया इमरान जूनियर ने। ये ऑफ कटर था, गेंद तवक्को से ज्यादा बाउंस भी हुई कासिम अकरम के। कैचिंग आज अच्छी रही है केपी की। जी हाँ, बैक ऑफ द हैंड ये गेंद था और अपना माइंड बना चुके थे कासिम अकरम के, जाना है बड़ी हिट के लिए, और कैच दे दिया यहाँ शॉर्ट थर्ड मैन पर। एक बार फिर केपी हावी होते हुए इस बार सेंट्रल पंजाब पे। बड़ी विकेट है ये, अभी भी इसके बाद 2 ओवर बाकी हैं। कासिम अकरम ने शानदार 20 बनाए 11 पे, 131 पे 7। तमाशाइयों का जोशो खरोश बदस्तूर है। सेंट्रल पंजाब की टीम 7 विकेटें गंवा चुकी है, तो बड़ा अच्छा फाइट बैक किया है। ये मैच जो है इस वक्त मुट्ठी में है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की, और ऐसे में फहीम अशरफ पहुंचे हैं जो 3 निस सेंचुरियां बनाए हुए हैं। तो 2 नए बैट्समैन जिन्होंने एक भी गेंद नहीं खेली अब पिच पे। और ये हैट्रिक का मौका था, लेकिन गेंद पहले गिर गई। कोशिश की थी कैच के लिए, दौड़े दौड़े आए लॉन्ग ऑन से वाइड। मुझे हैरत इस बात की है कि फहीम अशरफ को रोक के किस लिए रखा हुआ था। फैजान को ऊपर भेजा गया, जिस फॉर्म में ये हैं
पिछले मैच में भी आते ही पहली बॉल पे उन्होंने शॉट लगाया है। इन्होंने इससे पहले भी जब मैच खेला था और नॉर्दर्न को हैरान कर दिया था, एक ही ओवर में आते ही पूरा प्रेशर अपने ऊपर लेके और टीम को निकाला था परेशानी से। थोड़ा समझ के बाहर साहिबजादा फरहान ने पूरी कोशिश की अपने साथी को हैट्रिक दिलाने की, उसी चक्कर में कैच के उन्होंने बाउंड्री सैक्रिफाइस कर दी। मिड ऑफ के ऊपर से भी खेल सकते हैं, फील्डर दायरे में है और ये पिछले बैट पर लगी, इस बार इंपैक्ट लाइन के बाहर था। अच्छा करते हैं स्लोअर बॉल, आर्म स्पीड वही होती है, बैक ऑफ द हैंड बड़ा परफेक्ट है, पिच भी सही जगह होता है, कहीं लो फुल टॉस नहीं कराते। कासिम अकरम को चकमा दिया और अब यहां फहीम अशरफ को। देखिए ये मुख्तलिफ गेंद थी, अक्रॉस सीम स्लो डिलीवरी फेंकी। इससे पहले कासिम अकरम जिस गेंद पर आउट हुए थे वो सीमा पाई, इसलिए ज्यादा बाउंस भी होगी कासिम अकरम की तवक्को से। मिक्सअप करने की कोशिश की थी, इससे वाइड करार पाई, लेकिन बड़ी लाजवाब बॉलिंग इमरान की। एक बड़े मौके पर उन्होंने दिखाया कि वो चैंपियन बॉलर हैं, उनका मुस्तकबिल ताबनाक है। हालांकि इस टूर्नामेंट में सरगर्म इनकी बॉलिंग फॉर्म थी, लेकिन आज जब बिल्कुल चबूतरा तैयार था तो दिखा दिया है उन्होंने अपना टैलेंट। एक और स्लो डिलीवरी, इस पर पिल पड़े, 4 रन फहीम अशरफ है बैट्समैन। अंदाजा लगा लीजिए कि क्यों डगआउट में अभी तक ये थे। 140, 7 आउट। Middle stop. 44 शहजाद, 42 कामरान, 20 कासिम अकरम। यहां से देखना यह है कि अब और कौन है। कप्तान वहाब रियाज और फहीम अशरफ, एक्सपीरियंस दोनों के पास है। 12 गेंदें हैं, क्या ले जा सकते हैं ये 180 तक? इसके लिए 30 चाहिए होंगे, 40 इनफैक्ट अगली 12 गेंदों पे। शायद ज्यादा मांग रहा हूं मैं, लेकिन 35 तो आने चाहिए। ये चौका पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। ये चाल जान गए थे, जिस तरह बार बार स्लो डिलीवरीज फेंक रहे थे, और ये आगे भी थी। अब इस लेंथ पर नहीं फेंक सकते। अरशद इकबाल वापस आ गए। अरशद इकबाल की जो लेंथ हैं, ये हार्ड हिट करते हैं विकेट पर बॉल को, जो पिच करते हैं बॉल। फैजान को आउट किया, ये पहली भी कामयाबी थी इस ओवर की। आदिल ने कैच किया था इसको लॉन्ग ऑन पर। 8 बनाए उन्होंने, 13 गेंदें खेली थी। स्क्वायर ऑफ द विकेट इनको ज्यादा रन बनाए जा सकते हैं इनके अगेंस्ट, ये लेंथ ऐसी रखते हैं। इस बार फील्डर हैं, लेकिन इसकी फिक्र ना कीजिए, ये गई मिड विकेट से बाला बाला। अच्छी हिटिंग फहीम अशरफ की। पिच पर पहुंचते ही उन्होंने अपनी ताकत का एहसास दिलाया सबों को। जब यहां बैठ के हम अंदाजा लगा सकते हैं इनकी लेंथ का, तो बैट्समैन को तो पहले ही पता होगा। ये हार्ड हिट करते हैं डेक को, इनकी लेंथ ऐसी है कि आप स्क्वायर ऑफ द विकेट आप ज्यादा रन हासिल करेंगे इनके अगेंस्ट। तो पहले ही बिल्कुल तैयार खड़े हुए थे, अपने आप को पोजीशन में लाकर, और हेड ऑन इसको फेस किया इन्होंने, और बड़ा छक्का लगाया। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी यहां पे फील्डर के पास। सेंट्रल पंजाब की जो रन रेट है वो सर उठाने लगी। 8 से वो फिर तजावुज कर गई। तो ये एक ऐसी इनिंग्स है जिसमें नशेबो फराज देखने को मिले। 0 पर पहली विकेट, फिर 85 तक कोई विकेट नहीं और गिरी। ये अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ। ये पेनल्टी मेट ओवर है, तो बेहतर यही है कि आप बैटिंग क्रीज कोई हिट करने की कोशिश करें। और ये कासिम अकरम, ये वो सीमा गेंद थी,
कासिम अकरम जल्दी अपने बल्ले को स्विंग कर बैठे, लेकिन बाउंस भी हुई। जी हाँ, थोड़ी सी और पेस होती तो ये गेंद निकल जाती थर्ड मैन के ऊपर से। पिछली 15 गेंदों में 36 रन हासिल कर लिए हैं होम सिटी सेंट्रल पंजाब ने। उठाया, इसे फील्डर आसानी से कैच लेंगे। कामरान गुलाम इन दिनों गलतियां करने पर आमादा नहीं। बैटिंग हो या फील्डिंग, फहीम अशरफ की कैमियों खत्म हुई। 5 गेंदों में उन्होंने 14 रन बनाए, लेकिन उनका ये वार कमजोर रहा। देखिए, फुलर लेंथ किया था और प्ले में आ गए वो फील्डर्स जो वी में खड़े हैं डीप में, और अच्छा कैच ले लिया। काफी शॉर्ट थे बाउंड्री से। कैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस फाइनल में आपको ये जरूरी है कि इनको आप पकड़ते रहें जब आपके पास गेंद आए, ताकि प्रेशर बना रहे। 147 पिच पहुंच गई है सेंट्रल पंजाब की टीम। फहीम गए 14 बना के 6 गेंदों पर। केपी के बॉलर्स ने सूरत हाल को बेकाबू नहीं होने दिया। इस बार फुल टॉस पर लिया, फिर से यॉर्कर करना चाहते थे। सीम अप यॉर्कर। जब आप सीम अप यॉर्कर करते हैं तो गेंद ज्यादा तेज जाती है, और इस बार ये गेंद को टाइम करने की कोशिश की, लेकिन फहीम अशरफ पूरी तरह हाथ खोल नहीं सके। ज्यादा सामने हिट लगाना चाहते थे। सात गेंदें बाकी हैं इस इनिंग्स में। जफर गौहर भी बैटिंग कर सकते हैं, बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। कितने रन और डाल पाएगा यहां सेंट्रल पंजाब? बाकी ईमानदार 7 गेंदों में 148 तो हो गए। बोल्ड कर दिया। यू मिस आई हिट। अरशद इकबाल ने बाजी मार ली। पिछले ओवर में 2 विकेटें इमरान ने ली थी, इस बार अरशद इकबाल ने, और ये तो अपनी मदद आपके तहत। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने स्लॉग करने के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ था। आप स्टंप्स में गेंद करें और आपका फायदा होगा इन ओवर्स में। अरशद इकबाल की एक और कामयाबी। जफर गौहर गए पहली ही गेंद पर और 148 पे 9 आउट 19 ओवर्स के बाद। समीन गुल नंबर 11 बैट्समैन। सेंट्रल पंजाब कम मौके आए हैं जब उनकी टीम ऑल आउट हुई हो। वहाब रियाज कोशिश करेंगे कि स्ट्राइक अपने पास रखें। उनकी पाँव पे चोट लगी थी पिछले मैच में, नजर रखना होगी उस पर भी कि ये कितने फिट हैं। अच्छी बल्ले पर आई, लेकिन गैप नहीं मिला। रन लेने से इनकार कर दिया वहाब रियाज ने। ये तो हमें यकीन ही है कि वहाब कोशिश करेंगे कि सारी गेंदें खुद ही देखें, खुद ही फेस करें। ये जफर गौहर की विकेट, पिछले ओवर की आखिरी गेंद। टारगेट पे आप रहें और ऐसे मौके आपके फेवर में आएंगे जब बैट्समैन हर बॉल को मारने के लिए जा रहा है। 5 गेंदें बाकी। इस बार फील्डर है और एक बार फिर मौका है। लो कैच आदिल अमीन ने लिया। आज कोई भी खिलाड़ी मैदान पर कैच छोड़ने पे आमादा नहीं, इससे सेंट्रल पंजाब की टीम ऑल आउट हो गई। 148 पर बिसात लिपट गई है।
मेजबान साइड की। और खैबर पख्तूनख्वा ने जो यहाँ पर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर इस गेंद को स्मैश करने के लिए गए, लेकिन ये एंगल के साथ ज्यादा स्क्वायर चली गई। लाजवाब बॉलिंग इमरान खान जूनियर की। वहाब रियाज ने बनाए सिर्फ 2 और इस तरह सेंट्रल पंजाब की टीम अपने 20 ओवर खेले बगैर ही सिमट गई है। और अगर सेंट्रल पंजाब की टीम ने ये मैच जीता तो ये कम तरीन स्कोर होगा इस टूर्नामेंट में जहां तक डिफेंड करने की बात है। ये देखिए मोहम्मद अखलाक आज पहले ही ओवर में आउट हो गए थे इमरान सीनियर के हाथों। उसके बाद अहमद शहजाद और कामरान अकमल दोनों मिलकर अच्छा खेले, 85 तक स्कोर को लेकर गए। फिर दोनों यके बाद दीगरे आउट हुए और बाद में विकेटें गिरने का सिलसिला आखिर तक जारी रहा। कासिम अकरम ने 20 रन की इनिंग्स खेली। तो अब वक्त हो चला है मैदान पर चलने का बाजीद खान की जानिब। अहमद, स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ आपकी टीम का। बॉल बल्ले पे ठीक आ रहा है या पिच थोड़ी सी मुश्किल है? बाजीद भाई, अगर आप ये देखें जो 3 मैचेस यहाँ हुए हैं, स्विंग हो रहा है थ्रू आउट। इवन दो पहले 6 के बाद भी स्विंग हो रहा है और स्पिनर्स जब आते हैं तो बॉल फंस रहा है। आई थिंक बहुत अच्छा कामी भाई ने इनिंग खेली लास्ट मैच में भी, इस मैच में भी। हम प्लान कर रहे थे, हमें पता था कि लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा हमारा इनएक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा लंबा जाए ताकि उनको एक अच्छा मैच हो। आई थिंक आइडियली वी वांटेड के लोअर ऑर्डर से कोई आए, अच्छा सा कैमियो खेले। आई थिंक वी स्टिल हैव अ गुड स्कोर एंड हमें पता है कि फाइनल कितना मुश्किल होता है। इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स और उसमें चेस करना, बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े बैट्समैन कोलैप्स हो जाते हैं। तो आई थिंक 12 रन ऑलमोस्ट शॉर्ट है हम जो हमने प्लान किया था, लेकिन वी आर अप फॉर अ गुड फाइट। वी विल ट्राई टू फील्ड वेल एंड बॉल वेल इंशाल्लाह। कामरान अकमल का आपने ये बात की, आपकी पार्टनरशिप जब होती है ज़्यादा, दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, कोई आपस में बात भी करते हैं या अंडरस्टूड होता है सब कुछ? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, मैं कामी भाई जब अपने फ्लो में होते हैं, एक बैट्समैन जब फ्लो में खेल रहा होता है T20 में तो उसको जाने देना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब उनकी लग रही हो तो मैं रोटेट कर लूँ और उनकी कोशिश ये होती है कि अगर मेरी लग रही हो तो वो रोटेट कर लें। एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है और मेरे ख्याल से उन्होंने आखिरी 2 मैचेस में शो किया है कि एक्सपीरियंस जो है ना कितना फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली इस क्रंच गेम्स में। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये 150 स्कोर जो है हम मेक श्योर करेंगे पूरी फाइट करें और हम इसको जाने ना दें। और हमें पता है कि कितने प्रेशर में होगी दूसरी टीम। जस्ट अबाउट कपल ऑफ विकेट्स, उनके 2 बैट्समैन इन फॉर्म है। अगर हम उनको अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, बॉल फंस रहा है, टर्न हो रहा है, ये आसान नहीं होगा मैच। चलें, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। थैंक यू बस। जी हाँ, तो अब एक नज़र डाल लेते हैं बॉलिंग की कारकर्दगी पर। इमरान खान सीनियर ने 3 ओवर्स किए, 27 रन देकर 1 विकेट ली। इमरान जूनियर वो बॉलर थे जो आज नजरों का मरकज रहे, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 ही विकेटें कप्तान इफ्तिखार अहमद ने हासिल की, सिर्फ 5 रन के एवज 2 ओवर्स में। तो केपी की टीम को आज अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए 149 रन की जरूरत है। उनका हम जवाब जानेंगे एक वक्फे के बाद।
Welcome back. We are halfway through this final, and that's not a pretty sight if you happen to be a home city Central Punjab supporter or a player. 148 all out. Top scorer was Shahzad with 44 off 36. A very good partnership, actually, with 85 with Khyber Pakhtunkhwa. And that is all I've got to talk about, really. Just a bit of a lusty blow from Fahim Ashraf, 14 off 6 towards the end. But, gee, they did not play well at all. But they were well placed. 10 overs. 81 for 1 they were. That was perfectly placed. And it all went horribly wrong after that. So they had their work cut out now, that's for sure. Let's have a look at the highlights. It was Akhlaq and Shahzad who opened the batting. And a wicket first up. Imran Khan Sr. picked up Akhlaq very early, caught behind. No dramas there. Then it was a bit of a partnership just over the top. That one in the cover region. So this was nice work from Akmal and also Shahzad. 85 run stand off 61 deliveries. 7 fours and 3 sixes. So it was some lusty blows, and at this stage we were thinking, okay, these guys are going to go nicely here. They're going to be edging up close to the 180 mark, perhaps even more if they keep going. And we're talking about the fact that they mustn't throw it away. Well, that's exactly what happened. Akmal ran past one, 85 for 2 when he went. Shahzad soon afterwards was caught by Farhan off the bowling of Iftikhar. He was delighted, the captain, 89 for 3 when he went. Bada was another one soon after, caught by Gul off Iftikhar. 100 for 4. Captain was even happier. And guess what? He was even happier still. He picked up 3 wickets for 5 runs. LBW this time, 101 for 5. And then they needed to get some runs. Faizan arrived, did a couple of lusty boundaries. And this is what was required at this stage, right in the middle. We thought maybe there's a bit of a resurrection going on. But we didn't count on Mohammad Imran getting in the game. That was 1 wicket, caught on the fence, 131 for 6. This was the very next ball. Back of the hand, slow delivery, 2 and 2. Brilliant stuff from Mohammad Imran. Almost got a hat-trick, actually. That wasn't far away. Went for 4 in the end. And Fahim Ashraf decided to, I've got to hit some boundaries here, and that's what he did. So it was a little cameo from him, 14 balls. Correction, 6 balls for 14 runs before he was out, caught by Ghulam. 147 for 8 when he departed. And then it was all over. Zafar bowled Iqbal for the 9th. And Wahab Riaz was there for a short period of time. Mohammad Imran picked up his 3rd wicket. So 148 all out was a disappointment, that's for sure. Now this is what Khyber Pakhtunkhwa have got to do. They need to go at just under 7.5 runs per over. What are your thoughts, Lena? Well, wouldn't be easy, I'd say, but it could have been even more difficult had Central Punjab not played as senselessly as they did and lose those wickets in a heap in the middle, one after the other, like a procession, you said. But, you know, if you, in a big match, if you got runs on the board, you could still make it difficult. But I'd say 25 runs definitely short. Central Punjab could have done better, should have saved their wickets. And once the set batsman's out, I mean, you don't have to follow him the next ball. Another set batsman. So the reading of the situation wasn't that great, I'd say. Yeah, 2 of the key men who played well, Akmal and Shahzad, both went for 42, and they needed to kick on. I think we all know in finals you get 70s or 80s. One of them actually that probably wins a game. Okay, Wahab Riaz, lots of responsibility on him. He's starting with the ball actually. We haven't seen that for a while. He wants to pick up a wicket nice and early. He's always been a quality performer, Wahab Riaz. Will he get a bit of swing around the place? Definitely they need wickets because they haven't scored much, like we're saying, 25 runs short. So if they pick up some wickets early on, field well, maybe there's a run out around the place, they could really come back in the game. Quick shot of Shahzad. He's at a slip region, about 1.5 slips. Farhan is the top scorer in this edition of the National T20 Cup. He just wants to be nice and settled out there. Doesn't want to be rushed. Batting conditions are good. We'll have to wait to see if the ball gets wet at all. So far, it's fine. No dramas with that.
imagine the pressure Wahab Riaz must be. These are the top scorers. Farhan with over 400 runs, then followed by Shajil, Iftikhar, who's in the game, and then Ahmed Shahzad, who's also in this game with 300 plus runs, and Haider Ali, who's gone to the Pakistan squad. So brilliant. Strong drive. Iftikhar gets 8 runs. He moves into second slot. I was saying, Hazy, how much pressure Wahab Riaz must be feeling. They're 25 runs short. He's the senior man, the captain, and everyone in his team must be hoping that he'd get a wicket and that, get them on their way. And that's why he's got the new ball now. Strike early. That's the name of the game. Had a dip at that. Beautiful sight that is. Imran Khan Senior, top of the pop, 16. Iqbal, that's good. Gone up to number 14 now. Wahab Riaz, third, 12. Asif Afridi didn't have a particularly good night tonight. Also 12, and Rahman Reis, who's been a really good performer with 12. Got the hat-trick not long ago. That's kept a little bit low. They'll incentivize Central Punjab. Oh, that's nicely bowled. I like the length he's bowling this over. Fullish length so it can swing. Look at this delivery, Hazy. Look, nicely pitched up and it kept low. That should send some jitters down the batsman's spine. Just have a listen to these Central Punjab boys. They are really excited. Lots of encouragement out there. That's just going to fire them up even more, I'd imagine, whatever that discussion was about. Let's listen to the enthusiasm from this team after this ball's bowled. Top first over, maiden. Two batsmen there loom large in the middle. Gullam, only man to get 100 for Khyber Pakhtunkhwa, and also Iftikhar, who has been in terrific form of late, so consistent. And of course he'll be absolutely delighted with the way that he bowled. The first over was a maiden, and what they don't need to do now is panic. Let it be. There will be a bad ball. Just wait for it. Get your singles, doubles. Don't panic and throw your wicket. That would be just the worst scenario for KPK. Key bowler swings the ball in appreciably normally. 22 years of age. Yeah, he's bowled really well. Seam up and some pace. His team need him today. Let's see what he can do. Good carry, no swing. Great enthusiasm from the team. They are hunting these boys. What a good seam position and bounce. That's good to see. The team really fired up, led by Ahmed Shahzad, who's really, egging them on. And that's great to see. The whole team is on fire, and that's good.
That's back at a square. That's beautifully timed, and that's 4. That's screamed away for a boundary. Yeah, that's what you do. Wait for the bad ball and hit it when it comes your way. Slightly short, waited for it and hit it to the point region. 4 runs. Good shot. Patience. Bad balls will come. The coach prepares the team. That's how it works at this level and international level. The coach prepares the team. The captain's in charge of the team once they take the park. So the coach would have had a word or two, but I'm telling you now, Wahab Riaz has read the riot act to these boys. They are so fired up. That's picked up, and that's picked up superbly. That is 10 runs in 2 balls. What a beautiful shot. Brilliant. Absolutely great response. Maiden over, the second over, few good balls, 4, and now the 6. Such a good shot. Just waited for it and played it for a 6. Wow, what a shot. I like this. I like this. Riaz with him straight away, just providing a little bit of advice, which is always good to see. Sometimes you get caught up in a big game. It's a big game for a lot of these guys. I don't care what anyone says. They might say it's a normal game, just another match. It's not. It's a final. Everyone gets toey, I should say, a bit excited, a bit nervous about a final. There's a wicket. That's off the glove. That is a great comeback. Couple of boundaries, one big boundary, and then a wicket. Very good delivery. Nice seam position. Followed him. Easy catch for Kamran Akmal. Good response by Samin after being hit for a 4 and a 6. Great to see these youngsters all fired up. That's the first one. Harris goes for 10. 10 for 1 it is. Disappointed batsman. Harris going up. He's waiting for the replay, actually, I think, to see what happened. Perhaps a little bit of extra bounce. Certainly a wrap of the gloves and caught comfortably behind. This guy's dangerous, we know that. Look at the bottom. Best 110 not out against Northern not so long ago. Strike rate 135. Punch that into the covers. No run. Positive stuff from Gulab. End of the over. A wicket, importantly. 10 for 1. Khyber Pakhtunkhwa would have been ecstatic at the way things have finished in the first half. They will now know, after losing that first one, they've got to make sure they get a stand together here so there's no more scares in the next 3 or 4 overs. That's what they need, just a little bit of stability. Because this guy can bowl. Fahim Ashraf, we know he's changed his style because of injury. He's a lot slower, well, not a lot slower, but he is slower than he used to be. But he's a competitor, that's for sure. And a class act. I like the way he goes about his cricket. Yeah, he's done well. Here's the wicket. Followed him really nicely. Good bounce, good catch, good thinking. Didn't get flustered by being hit for a 4 and a 6. That's good.
perfect response. It really was. And this is what he had to put up with, actually, as he walked away. A couple of guys were around him celebrating. They had to walk pretty much through that group of celebrating players. There we go. That's not a great feeling. Such great intensity, Hazy. That's the final. That's the atmosphere of a final. And that is what we want. GG. That's the word, intensity. You're stealing my words, Hazy. GG is my word. Look at this. This is after that delivery. Watch these guys all come in towards the batsman, just to make him feel unwelcome. That's the idea. That's straight into the covers. Singles taken. If they get around 40, 45 odd in the power play and don't lose another wicket, I think that's perfectly fine. But if they lose a couple of wickets in the power play and they're about 40 for 3, then it's trouble. A run. It's pretty intense in the middle, but it looks pretty relaxed there with a nice cup of Tapal tea. That's the thing with tea, you know. Whatever you're feeling is going to relax you a little bit. Gee, they are fired up, these boys. This is quite amazing what they're doing. They're just trying to make the batsman feel really unwelcome. If it's a dot ball, that's the important thing. Cries of catch it. It's well over the top, and that's a really good shot. That just quietens the opposition down a little bit. Good boundary. Yeah, good for the batsman's nerves also. Farhan, who's been in good form, rock back, played it for a 4, wide of the fielder. Excellent shot. Just waited for the ball, no hurry. That's the way to go. Hard down the ground, and that's a very good shot to finish the over. That's another boundary. Back-to-back boundaries makes it 10 off the over. 3 gone, 20 for 1. Don't forget to wear your passion. Grab a shirt, create an account at shop.pcb.com.pk and order through the official PCB merchandise store now. Get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 21 shirt signed by the Pakistan squad. Deadline the 15th of October. 5 lucky winners will be announced soon after that. Hashtag wear your passion. Samin again. Oh, overstepping. That's a captain's nightmare. Captain can't change the field. It's a free hit, and the captain can't change the field. Yep, confirmation. Great opportunity for the batsman to hit a 6 or a 4, get going, you know, soothe the nerves. Just a gift from the opposition. Samin giving a gift to the batsman. Let's see if he accepts it gleefully or he doesn't. His problem is that fine leg's inside the circle. You can only change the field if the batsman cross. Mid-off, mid-on, inside the circle. It's a pretty good one. In fact, it's excellent. Nice and full. Excellent ball to bowl when you
you know, free hit, pressure, nicely bowled. That was the last delivery when it was hit for a beautiful 6, straight as an arrow. Great shot. So this becomes a long over now because of the extra energy with the free hit. That's sensible. I think that's good also to just keep Ghulam getting down there, get him on strike. He's the one that looks like he wants to go a little bit. Farhan is in really good form. Ghulam's just got to push it around a little bit at this stage. Ghulam can take a single, give the strike to Farhan, who's batted well up till now. There has been intense pressure, but he's taken it well and responded well. When there's been a ball to hit, he's done that. He's got that away for 4. Yeah, he's not really a single guy. That's the well, he might be single, I'm not sure, but anyway, he's hit that for 4. Yeah, he's been in good form. Just on his pad and played it so nicely. Off his pads, off his legs, in the gap, 4 runs. Well done. That'll get him going. That shot, good shot. Transfer the pressure. Now it's right back on the bowler, Samin, who's getting some more advice from Wahab Riaz. That sort of conversation from the captain is absolutely fine, providing it doesn't get too involved. I think you can overthink things sometimes, and I know they're in a bit of a hot spot right now, Central Punjab, home city Central Punjab. It's nicely bowled. A little bit of change of pace. No point cluttering the mind of the bowler. He's doing well. Just a reminder again to scan the QR code to win exciting prizes. And when you win them, you share it with the women, I guess. No, that's just for men. For once, Lena. Short ball. Bottom edge. Got some backup as well in the field, so that's worked out okay. 9 off the over, still 1 ball to go. Nicely poised the match in the balance. Central Punjab team has done well. Says khel to ho raha hai, which just means the game is on. So nicely poised the game. I mean, maybe they should have gotten a few runs more. Maybe they shouldn't have lost wickets in a heap, which is not done, because if you lose wickets, then you're the target in mind, you can't achieve that. To Iftikhar first, and then to Mohammed Imran. Last ball. Straight to the man in the covers. No run. 9 runs from it. It's still a good batting over. 4 gone, 29 for 1. साहिबजादा फरहान आज भी उन्होंने अपने रिवायती अंदाज में इनिंग्स शुरू की है। देखिए इस वक्त 91 का स्ट्राइक रेट है इनका, और जब ये इनिंग्स शुरू करते हैं तो पहली 15 गेंदों में स्ट्राइक रेट 100 के आसपास रहता है, 103 का, लेकिन जो अगली 15 गेंदें हैं उसमें ये बढ़कर 160 का हो जाता है। इसलिए तलाफी करना जानते हैं। वैसे भी ऐसा हदफ नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट की फिक्र हो।
सिर्फ पार्टनरशिप चाहिए अब्दुल रज़ाक को परेशान रखने के लिए। सिकंदर वक्त मेरे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में। ये देखिए आए गेंद की और बहुत ही जबरदस्त स्विंग हासिल हुआ। उसके बाद लेग स्टंप के बाहर ये गेंद और अगली बॉल सीधा जड़ में और आउट करने में कामयाब हो गए। यही चाहिए है इस वक्त सेंट्रल पंजाब को भी, या हमारे जीतने वाले खिलाड़ी। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि कप्तान सीपी के पहला ओवर मेड इन करा दिया उन्होंने। इसका मतलब ऑपोजिशन को सिर्फ 19 ओवर दिए हैं 149 बनाने के लिए। वहाब रियाज फाइटर तो हैं, लेकिन इस साल इनकी मुश्किल ये रही है कि जितने भी फाइनल खेले हैं T20 में ये हारे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेले थे अबू धाबी में, या वहाँ पर कप्तान थे। यहाँ ये अगर हिट लग जाती तो ये आउट हो जाते, क्योंकि इनका बल्ला या पाँव जो है वो नहीं लगा था बैटिंग क्रीज में। लगाए बगैर ये उछल गए थे, गेंद से बचना चाह रहे थे थ्रो से कामरान गुलाम। ये देखिए ये अगर लगती तो ये आउट थे। ये सही तरीका नहीं था गेंद से ये थ्रो से बचने का। ये मैच अगर जीतना है केपी को तो उनका पूरा इन्हिसार होगा साहिबजादा फरहान पे, और यही विकेट चाहिए होगी सीपी को। अगर तो ये मैच अपने हाथ में लेना है तो जल्द आउट कर दें साहिबजादा फरहान को, और उसके बाद रह जाएगा एक और शिकार, वो है इफ्तिखार अहमद। डिस्कशन हेड कोच और कप्तान के बीच किसको ओवर दिया जाए अगला, कि प्रेशर बना रहे। अभी तो स्पिनर्स ने आना है, कैसे रहेंगे आज कासिम अकरम और जफर गौहर। फील्ड में तब्दीली, थर्ड मैन को पीछे बाउंड्री की तरफ धक्का दे दिया गया। अच्छा शॉट खेला और यहाँ पर मिस फील्डिंग हुई। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जाहिर है ये गवारा की नहीं जा सकती। जितना कम स्कोर है सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स के पास, बॉलर्स को मदद की ज़रूरत रहेगी अपने फील्डर्स से, खासतौर पर दायरे के अंदर इन ओवर्स में। ग्राउंड फील्डिंग अच्छी रही है सेंट्रल पंजाब की। कासिम अकरम के साथ सैफ बदर, लेकिन कैचेस दूसरी टीमों की तरह इन्होंने भी छोड़े हैं डीप में। और ये बहुत ज्यादा फाइन चली है। 4 रन्स विकेट कीपर और फाइन लेग पर खड़े हुए अखलाक के दरमियान से खेलने में कामयाब हुए। ऑफलाइन हो गए थे, इसलिए मुंह की खाना पड़ी फहीम को। गलत लाइन थी ये और इसको भुगतना पड़ा। लेग स्टंप के बाहर गेंद, फाइन लेग इसको कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे जब सर्कल के अंदर है। बहुत फाइन खेल दिया था, गलती को फौरन सुधारना पड़ेगा। फाइनल है ये। फहीम अशरफ आमतौर पर ये दाएं हाथ के बैट्समैन को फॉलो करते हैं शुरू के ओवर्स में, लेकिन साहबजादा फरहान ज़्यादा पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए इनके स्टांस को भी ध्यान में रखना होगा। और ये वो बैट्समैन हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है इस पूरी चैंपियनशिप में। एक ऑलराउंड बैट्समैन के तौर पर फरहान ने 38 पे 1। ये लाहौर है और रात के अंचल पर जैसे सितारे झिलमिला रहे हूं,
ये रोशनियों का ऐसा ही मंजर है गुलबर्ग के इलाके से। पाकिस्तान क्रिकेट का हेडक्वार्टर है कज़ाफी स्टेडियम, और ये वो पाकिस्तान के कप्तान हैं जिन्होंने क़यादत की टेस्ट क्रिकेट के मैदानों में। इमरान खान, रमीज़ राजा, सईद अनवर ने पाकिस्तान की क़यादत की। माजिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, ये बाबर आजम, ये आखिरी कप्तान है, 34वें और आखिरी कप्तान पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में अब तक के। कारतार साहब पहले थे। स्पिन आ गया और वो भी पावर प्ले के आखिरी ओवर में चांस ले रहे हैं सीपी के कप्तान के। अगर स्पिनर को मारने जाते हैं सर्कल को देखते हुए तो शायद अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो पिछले ओवर में जिक्र छिड़ा था साहबजादा फरहान जो है मुख्तलिफ पोजीशंस पर इनको खिलाया गया है इस टूर्नामेंट में, और शायद इनकी भी नज़र है क्योंकि आने वाले दिनों में मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान की जो वाइट बॉल की टीम है उसको ज़रूरत है नए बैट्समैनों की। तो ये पहले ओपनिंग करते रहे, फिर मिडिल ऑर्डर में गए, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर भी अपना लोहा मनवाया और एक वर्सटाइल बैट्समैन के तौर पर सामने आए। स्पिन को अच्छा खेल रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और अच्छा दौड़ भी रहे हैं विकेटों के दरमियान। T20 में इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मौका दिया था, ओपन किया था इन्होंने। लूक रॉन्की के साथ कई मैच इन्होंने खेले, अच्छी परफॉर्मेंस दी। उस वक्त ने पीक पर थे लूक रॉन्की। उस ऐसे बैट्समैन का साथी बनना और मैचअप करना आसान नहीं होता। अच्छा खेलते हैं स्पिन को, ये जिस तरह बढ़ चढ़ के कामरान गुलाम, इनका मतलब यही होता है कि सेटल ना हो सके, एक लेंथ पर ये न गिरा सके। जफर गौहर कल विकेटें ली थी दोनों ही फिंगर स्पिनर ने सेंट्रल पंजाब के लिए इन टैंडम बॉलिंग करते हुए। ये इस मुकाबले का सबसे अहम मरहला भी है क्योंकि अगर ये पड़ाव पार कर गई खैबर पख्तूनख्वा की टीम, ये दोनों जो स्पिनर हैं जफर गौहर और कासिम अकरम, तो फिर जाहिर है कि इनके लिए ये ट्रॉफी उठाना या एजाज बरकरार रखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फरहान के लिए डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन। जफर गौहर पावर प्ले के अंदर ओवर करते हुए अच्छे 3 गेंदें की हैं, 2 रन दिए हैं अभी तक। क्या साहिबजादा फरहान चांस लेंगे क्योंकि पावर प्ले है, 3 गेंदें बाकी हैं इस ओवर की। इस बार लेंथ को सही तरह से नहीं रीड कर सके। खूबसूरत लाहौर है और क्रिकेट के लिए आइडियल हालात हैं। दर्जा हरारत कम होता जा रहा है दिन ब दिन। मिस फील्डिंग, ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि फील्डर ने सरनिगू किया हो इस फाइनल मैच में। बॉलर्स को वहाब रियाज को चोट लगी हुई है, ये समझना होगा। ये रोक लेना चाहिए था उनको, उनके हाथ से लग के गेंद निकल गई। जहां डॉट बॉल होनी थी वहां 2 रन मिल गए। जो प्रेशर बनाया था वो किसी हद तक कम हुआ। फिर भी अच्छा ओवर है, अभी तक 4 दिए हैं सिर्फ। आखिरी बॉल भी अच्छा करना होगा पावर प्ले का। काउंटी स्टंट करने के बाद जफर गौहर काफी पुरएतमाद बॉलर लग रहे हैं। इनसे पहले सफी अब्दुल्ला को खिलाया गया लेकिन वो इतने कारगर रहे नहीं। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इस बार बैट्समैन हट गए। स्पिनर उतना बुरा नहीं बनाता इस तरह की सूरत हाल में, जैसे फास्ट बॉलर अगर बॉलिंग क्रीज तक आ जाए और बैट्समैन विड्रॉ कर ले। अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल नपी तुली। सिर्फ 5 रन जफर गौहर ने दिए पावर प्ले में, 43 पर 1।
ये लिबर्टी चौक है यहाँ गुलबर्ग में, मेन बुलेवार्ड के मकाम पर। खासा मसरूफ़ इलाका और ये शाहरा मलका तरन्नुम है। ये आप जो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के दाएं जानिब अपर साइड पर, ये हुसैन चौक की तरफ जाती, वहाँ से ये MM आलम रोड को मिलाती है लिबर्टी मार्केट को, जो खाने पीने के एतबार से एक नई फूड मार्केट बनती जा रही है, मॉडर्न फूड मार्केट। खाने पीने की तरफ तो वैसे भी ज़्यादा रुझान है। यहाँ पर आपको कई तरह के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, खाने पीने की जगह मिलेंगी, सभी की सब बहुत ही लजीज। अब तारिक साहब भी लेकर जाएंगे हमको कहीं ना कहीं जल्दी। पहला रन तेज से लिया था लेकिन अहमद शहजाद ने अटैक किया बाउंड्री से आकर। अच्छे आउटफील्डर हैं अहमद। आप कोई ऐसी जगह बताएं जहां हम जा सकें और अच्छा मज़ेदार यहाँ का जो लाहौर का टेस्ट है वो खा सकें। लक्ष्मी चौक, उससे बढ़कर कोई ऐसी जगह नहीं। गवाल मंडी से गो के फूड स्ट्रीट अब उठ गई है। मेरी तरफ कासिम अकरम को अभी लाए नहीं है, फैजान से एक आध ओवर करवा के उसके बाद ये आई थिंक पूरे 4 एक साथ करवाना चाहेंगे उनसे। करंट और रिक्वायर्ड रन रेट आसपास ही हैं, 7.1 रन रेट करंट है और रिक्वायर्ड 7.6। ये विकेट से चेंज हो सकता है बॉलिंग के लिए और एक आध बड़ा ओवर कहीं मिल गया तो आप जानते हैं फायदा किसको होगा। फुल टॉस और मौका है लेकिन टकरा गए नॉन स्ट्राइकर से। देखना है कि दानिस्ता तौर पर तो रास्ता नहीं रोका था बॉलर का कामरान गुलाम ने, सब बिल्कुल नहीं हुआ। टॉप एज लगा था, अपने फॉलो थ्रू में वापस जाना चाहते थे और नॉन स्ट्राइकर से टकरा गए। शायद नहीं पहुंच पाते तब भी, लेकिन हाँ रुकावट जरूर हुई। बल्ले का फेस क्लोज करते, फुल टॉस बॉल था, शायद डबल माइंड हो गए, शोल्डर लगा बल्ले का और ये देखें ये तसादम हुआ था, नहीं पहुंच पाए बॉल तक। इस पेस को मारना बड़ा मुश्किल है। ये जो 118 पे ये गेंद हो रही है, अगर लाइन सही रहे आपको जोर लगाना पड़ेगा बाउंड्री पार कराने के लिए। और इस वक्त ऑन साइड पे 3 फील्डर जो हैं वो रोप पे खड़े हुए हैं। यहाँ 5 फील्डर इस वक्त बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के आसपास आप खड़े कर सकते हैं। 4 फील्डर जो दायरे में हैं उनमें से 3 स्क्वायर के पीछे हैं। इस सामने खेलकर रन लिया आसानी के साथ। कामरान गुलाम जो है ये खामोशी से खेलते रहेंगे, यही इनका किरदार होगा। ये देखिए वो जा रहे थे अपनी राह ही, कामरान गुलाम, उन्होंने रास्ता बिल्कुल रोका नहीं है। पिछली गेंद और स्लो कर दी फैजान ने 116 किलोमीटर पे। 1 डॉट 4 सिंगल, यही बात जो बार बार हम कहते हैं, ओवर अच्छा खत्म करना होगा। इस बार फिर डॉट डिलीवरी पिछले ओवर की तरह, इस ओवर से भी सिर्फ 4 रन आए, 47 पर 1। इस मौके पर अगर दोनों टीमों को देखा जाए तो 10 रन का फर्क है। सेंट्रल पंजाब की टीम आगे थी, उनकी भी एक ही विकेट गिरी हुई थी, लेकिन इसके बाद मतला ख़राब होना शुरू हुआ। सेंट्रल पंजाब की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग थी वो आज बहुत मायूस कुन रही और बड़े मैच का वो दबाव बरकरार
दबाव जो है वो झेल नहीं सकी। खैबर पख्तूनख्वा को फ़ायदा ये कि उनके सामने हदफ है और उन्हें 149 के मुतालिक सोचना है। सेंट्रल पंजाब की टीम 165 170 सोच कर चल रही थी यहाँ से। और खेल दिया खाली जगह पर, यहाँ पर पॉइंट के फील्डर नहीं पहुंच सकेंगे। 4 रन्स, इसे स्लाइस कर दिया, खासी बाहर गेंद थी ऑफ स्टंप के और कामरान के इस चौके के साथ 50 रन्स केपी के मुकम्मल हुए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा विड्थ दे दी और लेंथ भी ज़रा फुलर था, हालांकि मोटा एज लगा लेकिन गेंद गई सही वेकेंट एरिया में। 4 हासिल हो गया, उसकी तलाश थी काफ़ी टाइम से। पिछले 2 ओवर बड़े ज़बरदस्त गुजरे हैं सेंट्रल पंजाब के लिए और ये बड़ा ज़रूरी है कहीं ना कहीं से बाउंड्री ढूंढने। अभी आप कंपैरिजन की बात कर रहे थे, हमने देखा कि आखिरी 5 यानी 15वें ओवर के बाद से सीपी ने आखिर तक बनाए 43 रन, 41 इनफैक्ट, 5 विकेट्स गंवाई उन्होंने। पिच से दूर रह गए, 2 की कॉल की और पहुंच गए अपनी अपनी क्रीज में। अच्छी दौड़ लगाई है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई। और स्पिन की जब हम बात करते हैं तो केपी की टीम ने इस मामले में भी खुद को आगे रखा है। केपी के जो बैट्समैन हैं इनकी स्पिन के खिलाफ औसत 34 की है फीकस, यानी 1 विकेट की जो औसत है। स्ट्राइक रेट 8.18 का है, सबसे अच्छी औसत है तमाम टीमों से। इससे भी पता चलता है कि इनकी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो बेहतर है दूसरी टीमों से, अगर आप स्पिन अच्छी खेल रहे हैं। इनका जो मेन जो सहारा है मिडिल ऑर्डर में वो है इनके कप्तान इफ्तिखार। देखना यह है कि अगर कभी वो जल्दी आउट हुए तो कितना प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकता है मिडिल ऑर्डर। लेकिन सिकंदर, इसमें कोई कलाम नहीं कि पिछले बरस की तरह इस साल भी एक चैंपियन टीम की तरह ही केपी ने टूर्नामेंट खेला है। सीनियर खिलाड़ी चले गए, कोच तब्दील हो गया, कप्तान तब्दील हुए, लेकिन कारकर्दगी पे कोई फ़र्क नहीं आया। फतुहात के रास्ते पर ये टीम गामज़न है, एक आदत सी बना ली है इसने जीत हासिल करने की। सब टीम बनकर खेलते हैं। बैटिंग के बारे में इनको हमेशा एक फिक्र रहती थी। दरियाए अटक का पार पुल पार करने के बाद जब ये इस तरफ आते थे पहले, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वहाँ बहुत ही अच्छी क्रिकेट हो रही है, इससे लगता है डेप्थ है केपी की क्रिकेट में। जी हाँ, यकीनन, लेकिन सीपी इसको आसान नहीं होने देगा। ये 2 तगड़ी टीमें हैं नेशनल T20 की जो फाइनल में पहुंची हैं। 149 जो बनाने हैं जीतने को, इसको करेगा सीपी मुश्किल से मुश्किल तर। ओवर के आगाज में बाउंड्री मिल गई थी, उसके बाद दोनों बैट्समैन ने खतरा मोल नहीं लिया। 8 ओवर्स के बाद 57 पर 1 केपी। .92 of the last 12. Sabzada Farhan 26 not out. Kaman Ghulam with him, chipping away at the target. But what KPK don't want to do is leave too much for Iftikhar to do. He's bailed them out a couple of times. He's batted beautifully throughout this tournament, and he deserves a game where he can come in and just play normally and be able to win the game. Somebody else take up the challenge. The broadcasters, television, we've got Pakistan, North America, UK and Europe streaming. PCB YouTube channel, PCB Facebook page for crisp, high definition pictures.
And don't go anywhere, because this has the potential to become a very close game. Exactly like that. Just stay where you are. Qasim Akram, well, throughout this national T20 with the ball, he's made things happen. Spinners have generally made things very difficult in these middle overs, and batsmen have made it easy for them also by throwing away their wickets. Important phase, this one. Starts off with a couple of dots. Flat and into the pads. Saif Badr diving across, saves a run. And that's a shot in the air. Is it going to be out? Yes, it is. And the wicket. And the wicket the Punjab boys needed. I said this would be a difficult phase, and Bazed, these spinners are not easy to handle. Qasim Akram comes on and takes the wicket. He had that tendency to make things happen. Bottom of the bat, he wanted this to go mid-wicket rather than straight. Ahmed Shahzad with a comfortable catch. Good catch. Home city, Central Punjab in the game. Wahab knows that. Chipping away in the wickets, have not let this game slip as yet. Sahibzada Farhan out for 26, 57 for 2. Second wicket down. Adil Amin walks in. Strike rate of 123.9. And that'll do if he can bat that way through the innings. But he's here because, firstly, his run saved by Saif Badr at short mid-wicket made sure that Sahibzada Farhan was kept on strike. And then he went downtown, didn't middle it, and Ahmed Shahzad took a good catch. So the pressure was built up through good bowling plus the fielding. Last two matches, the fielding has been really nice. The semi-finals and the final, last three games, in fact, the fielding has become special. No catches drop, and this one comfortably taken by Ahmed. No problems. And that's making a difference, Bazed. You know, when you feel well, you take wickets, pressure is added, and games look really, I mean, good to watch. Qasim Akram just gone for 2 in this over and the wicket. We want to close this over out with just maybe a single or at most a couple of runs. It'll be excellent over. And he does exactly that, knock down the ground, just a single. So 3 off that over and that wicket. 9 done, it's 60 for 2.
Zafar Gore with a couple of overs remaining. You've got Qasim Akram, who's got 3 overs remaining. Plenty of options. Mizan as well bowled out 1 over just for 4. And Zafar Gore again, left arm spin round the wicket. Hits it big and gets maximum. That's a great shot. Straight back over the bowler's head and lifted it over the boundary. Release of pressure. What a beautiful shot. Came downtown, hit it straight as an arrow, and what a good shot. Oh, wow. Great footwork and fabulous result. First boundary in 12 balls. And they needed that. Needed a big hit, needed a boundary just to calm the nerves because pressure was building. Kamran Ghulam made sure he got close enough to lift it straight. He's got a lot of power. He's got the ability to clear the fence and he's also very quick off his feet. Well done, Just hit a 6 in the over and take a few singles. Not take too many chances. That's why they're losing too many wickets against the spinners. That, you know, they hit a 6 or a 4, and the very next ball they want to hit the bowler out of the park again. But that's not going to happen. You got to see where the ball is and then play it accordingly. Play the ball according to the merit, even if it's T20. Wickets are still very important, I tell you. Rest assured. But the only thing for Khyber Pakhtunkhwa is that Central Punjab's bowling in the last 5 overs is the best of the lot. Economy rate of 9.45, but you've got the likes of Wahab Riaz who'll come in and bowl at the back end, so you don't want to live too much. You want to be ahead of the curve, ahead of the game. So yes, it's all very well knocking the ball around, but you have to keep in mind that this is a very strong bowling lineup, especially in overs number 15 to 20. He's come back well. 6 off the first ball, but 9 conceded off the over. 69 for 2. Tim. 8 runs and over needed, and they need an upward curve from here on in. Abdul Razak doesn't give a lot. He's almost poker face all the way through. He definitely wants to convey some message. Looks a bit anxious. That's nicely played for a single. The point that you were making about staying ahead of the run rate, required run rate, that's fair. But, you know, Punjab was about 20 runs short. So right now, maybe these couple of overs with the spinners, they can take the liberty of maybe scoring 7-8 runs and over. Reverse sweep into the gap. Innovation, and he does it really well. Adil Amin with a welcome boundary. Reverse sweep.
And so nicely played on top of it. You know, right now, this is what they need. Just a couple of hits in over, maybe 8 runs, 7, 8 runs, but not lose too many wickets. That's been the main demise of most teams. So this was a good shot in the circumstance. He knew it, where he had to play it. The ball was there, and he hit it nicely. Good outfielding. The call was for 2, but very quickly to the ball. And you see the rags are out. They're making sure that the ball's dry. So that's another aspect they need to get on top of, is that dew. Pretty even at the moment. Even Stevens, as they say. Wicket could tilt it in favor of the Central Punjab boys, and another 15-20 runs in this partnership could work really well for the KP men, you know. So this is an important phase of the innings for both the teams. Down the leg side, fired it in, was trying for the Yorker, about leg stumpish, and he's gone away. Wahab Riaz not impressed. These guys not impressed either. Stern looking faces. Couple of runs gifted, not happy. Ghulam's playing a very important innings here. He needs to carry it through and make a 50 here. It's important that he's here for a few overs at least. Run rate required 7.64. Who will blink first? Will Wahab now be thinking, I should come back into the attack? Or is it just going to be spin for the next couple of overs? After 11, it's 80 for 2. .67 required. It seems under control. Home city Central Punjab, they need all the roads to lead to a wicket. Wahab Riaz brought himself back into the attack, made him to start off the innings. Now he's back. He is back hunting for a wicket. Oh God. Fahim Ashraf with a couple of overs. Faizan surprised that he just bowled the 1 over and then been replaced. Maybe he'll come back, but at the moment, the main strike bowler, the captain himself. Wahab has got a great ability to take wickets, break a partnership. He's very mature, seasoned bowler. And he's the captain, so he realizes that he will have to break this partnership in order to make further inroads and win this match. So wickets are the key here. So it's important that he bowls one of his special deliveries, the Yorker or the bouncer.
Basit, do you think there could be a field change, maybe a slip to get a wicket, or no? You love the slip, don't you? You always want a slip. Whatever the situation, you want a slip in. I absolutely do, because it's a wicket-taking position, and I love wickets, and I think it changes the whole scenario once you pick up the wicket, and they need one. And that is why I love the slip so much. Nice shot delivery, this one by Wahab. Beautifully bowled. But I asked your opinion. What position would you like? Now, for the slip, you need to remove a fielder from somewhere. Where will that fielder come from? Short ball and miss fail. That's gone to the fence. Well, I'm not pleased, but it's a pretty decent shot, but desperation requires that that ball should have been stopped. Yeah, not to be bowled. Ball on the pads, and this time was nicely played. No problems at all. It's a gift, you know. If you bowl it there, set batsman's going to take it. Any batsman's going to take it. Wahab's not fully fit also, so I feel for him. Maybe he's not, from the last match when he got injured, he's not bowling at full throttle. Maybe that's one of the reasons. Slower bounce this time, yes. Talk about the slip now. If Wahab's going to bowl that length, he's going to bowl short, then the deep square leg, deep mid-wicket are a catching option. It's not just about that slip, and very rarely with the old ball is Wahab going to get people out in the slip. So he'll know his bowling much better than us guys. But I just think that in this situation where Wahab is bowling, I don't see him produce that delivery which gets the nick and gets the batsman out. He's much rather to bounce them out. Yeah, absolutely agreed. I mean, but then he needs to have one fielder at deep square leg. 88 for 2. कामरान गुलाम एक और बड़ी उम्दा इनिंग्स खेल रहे हैं। 2 दिन पहले इन्होंने यहां पर सेंचुरी बनाई थी। इस चैंपियनशिप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली थी 110 की। बाबर आजम और शर्जील खान ने भी सेंचुरी बनाई, लेकिन वो इनसे बड़ी इनिंग्स नहीं थी। ये चांद चमक रहा है, और ये केपी की क्रिकेट टीम भी, जिसने अब तक सेंट्रल पंजाब को यहाँ नाको चने चबवा दिए हैं उनके होम ग्राउंड पर। कहते हैं अक्टूबर का चांद सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। वैसे तो लाहौर का चांद चमकने के लिए अक्टूबर का मोहताज नहीं होता, लेकिन जब ऐसा हो जाए तो फिर क्या ही कहना। और इस चमक के साथ ये ट्रॉफीज भी चमक रही हैं। खेल दिया ऐसे बड़ी खूबसूरती के साथ। 4 रन के लिए गेंद पहुंचेगी नहीं, दूसरे रन के लिए वापस आए। ज्यादा पेस नहीं थी, वो मुश्किल 122 की थी फैजान की रफ्तार। कुछ अलग करना पड़ेगा सेंट्रल पंजाब को। अभी जिस तरीके से आदिल अमीन और गुलाम खेल रहे हैं, खास मुश्किल नहीं हो रही और इन्हें जल्दी भी नहीं है। रिक्वायर्ड रन रेट के बहुत करीब है, 7.4 का। जहाँ और ये कामरान गुलाम की आंखों में एक तहिया नजर आता है। देखिए इनकी आंखों में भी एक तहिया है। ये टपाल टी पीने का टपाल टी लम्हा था। 4 विकेट कीपर काई ले गए। उम्दा विकेट कीपिंग कामरान अकमल की।
कामयाबी दिलाई अपनी टीम को। यहाँ फैजान ने अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे कामरान गुलाम डटकर। शॉट की ऑप्शन बुरी नहीं थी, लेकिन बहुत जोर से मारने चले गए थे। ओवर पिच्ड गेंद था और एज लगा और अच्छा कैच। कामरान अकमल मिस नहीं करते ऐसे कैचेस, और यही चीज जरूरी थी इस वक्त, चाहिए थी सेंट्रल पंजाब को। कामरान गुलाम ने 37 रन बनाए 31 गेंदों में 90 पर 3। इफ्तिखार अहमद नए आने वाले बैट्समैन है, और ये देख सकते हैं ये विन लॉस जो प्लॉट है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो टीम है इब्तिदा में उनकी कारकर्दगी बहुत ही आला थी, और ये देखिए 20 ओवर तक काफ़ी फ़र्क था, तकरीबन 80% उनकी कामयाबी का इम्कान हो गया था। लेकिन अब ये जो दोनों लकीरें हैं ये मिल रही हैं 32वें ओवर के आसपास आकर। उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। वैसे भी क्रिकेट का खेल जो है ये ज़िंदगी की तरह ही होता है, एक डगर पर ज़िंदगी की लकीर भी चलती नहीं है। मुकाबला हो तभी मज़ा है, कभी बल्लाबाजी मारे कभी गेंद, और अब इफ्तिखार आ गए मिडिल में। ये बहुत ज़रूरी फेज़ है। सीपी की यही कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इनको वापस डगआउट भेजा जाए। इसके बाद नबी गुल हैं जो नौजवान हैं, आसिफ अफरीदी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, खालिद उस्मान फिनिश कर सकते हैं इनिंग्स को। सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग पर एक नज़र डालते हैं। तीन विकेटें आज उनको अब तक मिल सकी हैं, इसी वजह से इफ्तिखार अहमद को मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन अभी क्योंकि जो ड्यू है उससे बचने की कोशिश की जा रही है। सुपर सपर्स मैदान पर आ गए थे। ये देखिए ये उछलती हुई गेंद गई विकेट कीपर के पास, उसके बाद अच्छी बैटिंग कर रहे थे यहाँ पर साहिबजादा फरहान, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर। उम्दा कैच हरियाणा शहजाद का, और उसके बाद कामरान अकमल का। इनका एक्शन जो है क्या ये पिक करना आसान है बैट्समैन के लिए? फैजान का जरा हटके है, इतना आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी होता है कि बैटर जल्दी रीड करे। T20 में तो वैसे ही टाइम बहुत कम है। स्पेशली जो आके तेज रिस्ट मारते हैं वो वाले बॉलर्स के ऊपर उनकी पेस जज करना मुश्किल होता है। स्लोअर वन था, रीड कर ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर से मारने चले गए। 7.87 की औसत दरकार है इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा को, और ये अच्छे आसार नहीं है जिस तरह ये तौलिया निकल आया है, क्योंकि इससे मुश्किल होगी ख़ास तौर पर स्पिनर्स को। अभी ओवर रहते हैं यहाँ पर कासिम अकरम के भी और जफर गौहर का भी एक ओवर है। फुल टॉस को खेला गैप में, यहाँ पर दूसरा रन बनाने का मौका है। अच्छी दौड़, इसका मुजाहरा हमने पहली बार नहीं देखा इस इनिंग्स में। थोड़ा सा सरप्राइज हो गए थे इफ्तिखार, लेकिन फिर भी 2 रन बनाने में कामयाब हुए। इनकी विकेट बहुत अहमियत रखती है इस मैच में, और जिस मुश्किल की आप बात कर रहे थे तौलिया इनके हाथ में, और यही बात इफ्तिखार ने भी टॉस पे की थी कि ड्यू आ जाएगा तो कदरे आसान हो जाएगी बैटिंग। सेंट्रल पंजाब ने अपनी तीसरी विकेट 89 पर गंवाई थी, केपी ने 90 पे।
और ये खराब गेंद थी, यही बर्ताव होना चाहिए था। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस और इफ्तिखार सिर्फ बल्ला लेकर गए। अच्छी प्लेसमेंट। 13 ओवर्स के बाद 96 पर 3 केपी। जितनी मजबूत बैटिंग लाइनअप है और खैबर पख्तूनख्वा का जितना अच्छा रिकॉर्ड है रन चेज करने का, 42 गेंदों में 53 रन, ये बाजार तो मामूली स्कोर है, लेकिन क्योंकि फाइनल है उसका दबाव होता है। यहाँ सेंट्रल पंजाब की मुश्किल ये है कि अगर इस तरह बाउंड्रीज मिलेंगी तो एक तो आप रन कंसीड कर रहे हैं और दूसरा गेंद जब ट्रेवल करती है साउथ फील्ड में तो वो जो ओस है ये दूसरे बॉलर्स का भी काम मुश्किल बना देती है, उसको ग्रिप करना मुश्किल हो जाएगा गेंद को। फील्डर्स की भी मुश्किल है और ये एक अंदाज़ा लगाएं, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बॉलर्स साफ कर रहे हैं बॉल को, लग रहा है कि मुश्किल पेश आ रही है उन्हें। ये मैदान के जो बाज़ हिस्से हैं आउटफील्ड के, वहाँ पर सुपर सॉपर चलाया गया था कुछ देर पहले, लेकिन ये खासा बड़ा वेन्यू है। प्लेइंग एरिना बहुत बड़ा है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेइंग एरिना है ये किसी भी क्रिकेट सेंटर पे, कज़ाफी स्टेडियम। जफर गौहर विकेट की तलाश में हैं, आज अभी तक कामयाबी मिली नहीं है। इफ्तिखार अहमद की जो बैटिंग औसत है वो बढ़ जाती है जब ये रन चेज करने की बात हो। अक्सर देखा गया ये नॉट आउट जाते हैं, मैच जितवाते हैं। सिंगल नहीं है बॉयज। बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं, जहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन चाहिए उसी के मुताबिक खेलते हैं, फिर जब हिटिंग की जरूरत होती है तब अलग मोड आ जाता है इनका। हवा में रही गेंद, पिच से दूर रह गए थे इस बार आदिल अमीन। देखिए स्पिनर है, उसको बैट्समैन के T20 में पैरों पर नजर रखने की जरूरत होती है। देखिए दोबारा पैरों पर नजर थी जफर गौहर की, उसे शॉट उन्होंने लगने नहीं दिया। जिस तरह बैट्समैन की नजर स्पिनर को खेलते हुए उसके हाथ पे होती है, उस तरह बॉलर की नजर बैट्समैन के पैरों पे होनी चाहिए। इवन फास्ट बॉलर्स की भी नजर होनी चाहिए, कहाँ क्रीज पे खड़े हैं कहाँ नहीं, कदमों का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा, डीप जा रहे हैं क्रीज में या नहीं, क्योंकि यही हरबे हैं जो बैटर्स अपनाते हैं स्पेशली डेथ ओवर्स में। लेकिन ये तो खड़े खड़े भी छक्का लगा सकते हैं। इफ्तिखार अहमद के लिए ये टूर्नामेंट बड़ा लाजवाब रहा है। ये अब तक 371 रन बना चुके हैं, बेहतरीन स्कोर हालांकि 58 है। ये देखिए इस बार कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया और सामने छक्का लगा दिया कप्तान इफ्तिखार अहमद ने। केपी की सेंचुरी भी मुकम्मल हुई। ये शाहाना अंदाज था स्पिनर से निपटने का। 14 के बाद 105 पे 3।
इफ्तिखार अहमद 364 रन बना चुके हैं, औसत उनकी सबसे ज़्यादा है। शोएब मलिक ने 6 ही मैच खेले थे, उनकी 75 की है, बाबर आजम की 71 की थी। आज से पहले तक इनकी ये औसत थी और अब ये बढ़ती जाएगी अगर ये जितनी देर तक ये नॉट आउट रहे। ये एक झलक थी जो ये कर सकते हैं। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया था और सीधा डाउन द ग्राउंड छक्का। अच्छा शॉट, यहाँ पर स्कोर ऑफ द विकेट खेला, गलतफहमी पैदा हो गई थी। इफ्तिखार जो हैं वो गेंद को ही देख रहे थे। हुसैन तलत बहुत तेजी से लपके थे गेंद पे और ये देखें थोड़ा सा लेट निकले, लेकिन फंबल की वजह से 2 रन बनाने में कामयाब हुए। आज इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं की, इसलिए मायूसी का इजहार किया है वहाब रियाज ने। वहाब रियाज के लिए ये जो साल है, अभी तक कोई टाइटल नहीं जीते हैं। PSL के फाइनल में ये पेशावर ज़ल्मी के कप्तान थे, वहाँ पर मुल्तान सुल्तान्स की टीम ट्रॉफी ले गई और उसके बाद जब ये वेस्ट इंडीज़ गए CPL में तो वहाँ पर सेंट लूसिया के लिए खेल रहे थे। फाइनल में सेंट किट्स के हाथों शिकस्त हो गई, वो भी दिलचस्प फाइनल था। जी, इसका जिक्र कल इन्होंने किया था प्रेजेंटेशन में। और यहाँ जिस तरह की इफ्तिखार बैटिंग कर रहे हैं, ये वही नतीजा हो सकता है। शॉर्ट गेंद को खूबसूरती के साथ कट किया, आला बैटिंग, अपनी फॉर्म को आज भी कैश करा रहे हैं इस फाइनल के बड़े मौके पर कप्तान। विकेट के अंदर गेंद हो, बायर हो, लेग पे हो, ये किसी को भी नहीं बख्शते और इसीलिए बहुत मुश्किल है इनके अगेंस्ट बॉलिंग करना। विकेट दे दी थी, उसका फायदा उठाया और ये महंगा ओवर जा सकता है। 7 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें बाकी हैं। यार अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन निगाहों से कि सूरत हाल जो है वो बेकाबू होती जा रही है। वापसी के लिए इस अंधेरे में रोशनी दरकार है, लेकिन यहाँ फील्डर आए लेकिन उछलने के बावजूद गेंद जाती रही। एक और छक्का इफ्तिखार अहमद का, वो इस मैच को जल्द अज जल्द खत्म करना चाहते हैं। बल्ले की आवाज ने बता दिया था कि ये बाउंड्री के पार ही जाने लगा है। मिडल ऑफ द बैट आया था, अभी उस तरह टाइम नहीं हुआ, इसीलिए कैच की आवाज भी सुनाई गई थी। वहाब रियाज कुछ भी ना कर पाए, सिर्फ इसको अपने सर के ऊपर से जाता देख सके। अब 31 गेंदों में सिर्फ 30 रन की जरूरत है। निस्बत बहुत ज्यादा आसान हो चली है, इस मैच को एकतरफा कर दिया है इफ्तिखार अहमद ने इस ओवर में। जिस तरह के मूड में लग रहे हैं, उनका इरादा नहीं है आखिरी ओवर्स की तरफ मुकाबले को ले जाने का। बेहतर भी यही होगा, जब फॉर्म में है, मिडल भी हो रहा है अभी, इसी तरह निकलना चाहते हैं प्रेशर सिचुएशन से कि कोई भी मौका ना दे सेंट्रल पंजाब को। ये नो बॉल, इस रन भी, फ्री हिट भी, सिर्फ फील्डिंग तब्दील करने के मजाज होंगे। वहाब रियाज, फैजान का ओवर और ज्यादा लंबा हो गया। इस नो बॉल ने जलती पे तेल का काम किया है। 16 रन आ चुके हैं और ये फ्री हिट अभी बाकी है। यहाँ कंधे अब झुकने लगे हैं जो सेंट्रल पंजाब के खिलाड़ी हैं। इफ्तिखार अहमद इस वक्त जैसी बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने मुखालिफ टीम को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है। ऐसे उठाया गैप में, वहाब रियाज लॉन्ग ऑन से आए लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। बहुत ही महंगा ओवर था, 20 रन फैजान देकर गए और शानदार जारहाना बैटिंग का सिलसिला जारी है कप्तान इफ्तिखार की।
125 पे 3। अभी तक इस मैच का ये अहवाल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ 24 रन दरकार हैं 30 गेंदों पे, और इफ्तिखार मौजूद हैं 11 पे 28 बना चुके हैं, और उनका इरादा यही है कि जल्द से जल्द इस मैच को ख़त्म करें और ट्रॉफी उठाएं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, इमरान अहमद खान, PCB के कायम मकाम CEO मिस्टर सलमान नसीर। ये देखिए, ये लंबा हाथ मारा और अच्छा गैप ढूंढने में कामयाब हुए। उनकी खूबी यही है कि अगर हवा में शॉट खेलते हैं तो कोशिश होती गैप में जाए ताकि आउट होने का खतरा कम से कम रहे। इसे खेला मिड विकेट की जानिब। मुश्किल ये बॉलर के लिए कि इफ्तिखार एक तो क्रीज में डीप जाते हैं, ऊपर से विकेटें कवर कर लेते हैं ऑफ साइड पे शफल करके, तो जो भी उनके आड़े आती है गेंद वो बाहर ही जाती है। यार एक बार फिर वो साबित कर रहे हैं कि बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं, क्योंकि रन चेज में अगर आप बार बार टीमों को जितवा रहे हैं, अपनी कप्तानी भी कर रहे हैं, तो उससे भी पता चलता है कि आसाबी तौर पर कितने ज़्यादा मजबूत हैं, सूरत हाल हर तरह की झेल सकते हैं। पिछले टूर्नामेंट रावलपिंडी में पिछले बरस जीता था इनने, फाइनल में सदर्न पंजाब को हराकर। इस बार सेंट्रल पंजाब की बारी है। कासिम अकरम लेग स्टंप के बहुत बाहर इस बार निकल गए, और ये 5 रन। विकेट कीपर के पास दूर दूर तक मौका नहीं था। एक तरह से बस गिव अप कर चुके हैं। कामरान अकमल के पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे इफ्तिखार की वजह से। ऐसा लगता है सेंट्रल पंजाब के जो बॉलर्स हैं उनने हथियार फेंक दिए हैं। अब देखिए कंधे झुकने लगे हैं, बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत कमजोर पड़ गई। फुल टॉस, मिड विकेट से फील्डर आ रहे हैं, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे, और तीसरा भी हासिल कर लिया गया। ठीक है, फील्डिंग भी जो है वो अब कैजुअल होती जा रही है। हुसैन तल्लत ने कोशिश की थी पकड़ने की, और एक बार फिर शायद फंबल कर बैठे बिल्कुल, 3 रन बनाने में कामयाब हुए। ये चीज़ नहीं दिखनी चाहिए, आखिरी गेंद तक एफर्ट जो है वो पूरी नजर आनी चाहिए। काफी मुश्किल हुई है कासिम अकरम को यहाँ गेंद को ग्रिप करने में। इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर को क्लियर किया और दूसरा रन जल्दी जल्दी हासिल कर लिया गया। याद है 1996 में जब पहली मरतबा यहाँ डे नाइट क्रिकेट हुई थी, वर्ल्ड कप का फाइनल था, और उसमें शेन वॉन जैसे बॉलर को बड़ी परेशानी हुई थी अरविंदा डिसिल्वा और राणा टुंगा को बॉलिंग करते हुए। ओस की वजह से शाम मुश्किल हो जाती है स्पिनर्स के लिए ऐसे में। इफ्तिखार ने जिस तरह मैचेस जितवाए हैं उनको बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, और जब आप इनिंग्स ऐसे जितवाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि अपनी इनिंग्स किस तरह पेस करनी है, कौन से एरिया टारगेट करने हैं, किन बॉलर्स को आप टारगेट कर सकते हैं।
और वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो ये लेके आए हैं फाइनल में। सेमीफाइनल में नॉट आउट गए थे। और आज भी इनको कोई जल्दी नहीं है। इस वक्त ये अपनी शराइत पे बैटिंग कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद 16वां ओवर मुकम्मल होने पर केपी ने बनाए हैं 138। मैं ऐसे हूँ बैठा हूँ, मैं ऐसे पाऊंगा तो किस तरह ऐसे देखो ये पैर ऐसे मेरा रह गया क्योंकि दूसरा है सिंथेटिक नहीं नहीं ये दर्द होता नहीं देखो जरा इधर। Well, it's a one-way street now. Just 11 required. Khyber will be the champions very soon. 7 wickets in hand. Just not enough runs. That's the story from Central Punjab. 148 after being in a really good position. That's worked away, and that's 4 more. Very good shots. It's getting closer and closer. 50 partnership of just 25 deliveries and 36 from this man. Captain Iftikhar, once again, it's been his tournament. Just cannot do anything wrong with the bat, with the ball as captain. Wahab, resignation. That time's come. Yeah, how fitting that Iftikhar is there and looks like being there at the very end. Just 7 balls now. Correction, just 7 runs now. 23 balls, that's what they've got. 52 and 25 deliveries, that is some going. 61 runs scored off the last 30 balls. That's how easy they've done it. Jamming into his pad, nothing there. I think it's just quite worth reflecting what happened to Central Punjab when they were batting, actually. As we just get confirmation of this 50 stand. Pretty good contributions, 36, and Iftikhar is ahead of Adil Amin. But Central were 85 for 1, then they lost 4 for 16. Then they scrambled to 131 for 5, then they lost 5 for 17. And that's the story, that's the game, that's the final. Looking to smack it, I think, for about 10. It's just the one. So Khyber Pakhtunkhwa retaining the title, won this last time around, and this time lost players going into the Pakistan team, but made sure that they still play the brand of cricket that won them games. Would have been a wide, I think, if he hadn't reached it. He did, and just picked up 1. Yeah, they had obviously Mohammed Rizwan at the top. He was there for a long time, actually, a captain. He had the side buzzing. I think that had a lot to do with it. They're a very busy side. They're a buzzing side. That's what I liked about them. And I think he set a really good tone. You could see it meant a lot to him. He didn't keep the whole time as well. He spent some time in the field, controlling the team in the field. Made sure that he spread his knowledge around the place. Zaman, of course. He's tried to hit that hard. Has he got it over the top? He has. A couple of bounces. 4 runs it is. And it's just 1 required now. Captain says, right, I bring him in. And swung really hard, swung himself off his feet. Well, that's Iftikhar. He's got on to 41 of just 18.
Again, he does this time and time again, and you think that he'd come a time when he'd fail, but not in this tournament. National T20 2021 has completely been dominated by Iftikhar Ahmed. It's been his tournament. One required. And that's it. The screams. The yelps of delight. Teammates are excited. Khyber Pakhtunkhwa are the national T20 Cup champions. What a performance from them. Look at the captain in the middle. He is absolutely engulfed. They've lifted him above the ground now. Magnificent stuff from Iftikhar. Some scenes here in Lahore. Absolutely superb. Khyber Pakhtunkhwa defending their title and defending it in style. The runners-up, Home City Central Punjab, being left behind, but it's been all about Khyber Pakhtunkhwa tonight. First in the field, and then with about a convincing victory. And that man led from the front. Wahab could not do much. It was Iftikhar Ahmed yet again. First with the ball, and then with the bat. Coaches being lifted. It's been a unit which never said die. They've been consistent throughout the tournament, and they've played the big moments as if their life depended on it. Top two run getters for KP, and also the top wicket taker. That tells a story as well. You've got individuals performing like that, you're bound to be right at the top, you're bound to get in the final. You just got to make sure you steer the ship home, and that's what that guy did. Iftikhar as captain, not only with the bat, with the ball as well. This is one very happy unit. Have a look at this. They're in the middle of the pitch. That's one for the video. Perfect. Nicely done, boys. They're going to enjoy these celebrations, that's for sure. That is a wonderful, wonderful victory. Superior team, played superbly. They had to be well led after their captain departed, after the national players departed. And the other guys just came in, they slotted in, they got runs. Golem, he played superbly, let's not forget about him. Got a magnificent 100. Took an opportunity, and the first time a 100's been scored by KP. That was special, and they're going to be smiling for a long, long time. Complete team, complete performance, and they've made sure that it carried all the way, even in the final. Wahab can sit down and contemplate. Well, they've been outdone by just too much skill from Khyber Pakhtunkhwa. Talk about unity, talk about a side which is together. Exactly that, and that's why they've become champions, and champions by far. Now there's a face of disappointment. Got injured last night, would have battled overnight to be fit for today. Here's a look at the winning moment again. He didn't mind where that went. Look at this elation from the captain. And the teammates out of the dugout, onto the field. They can see how much it means to these guys.
these really are extraordinary scenes. Smiles all round. And there's disappointment on the face of the captain of Central Punjab. Okay, let's go downstairs now to Marina. मेरे साथ इमरान खान सीनियर। इमरान, सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपने दोबारा टाइटल जीता है। जब ये सफ़र स्टार्ट किया था तो एज ए टीम क्या किन चीज़ों पे फोकस था? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जिस तरह हमने स्टार्ट में यही बात की है रिजवान और कोच साहब ने कि चैंपियन से कम बात ही नहीं करना है, और वही हुआ। जो आज हम चैंपियन हुए उसका सारा क्रेडिट हमारी टीम मैनेजमेंट को जाता है, जो हमें अच्छे फैसिलिटीज़ और प्रैक्टिस कराते थे। और दूसरा ये कि जो प्लान हमने किया था फाइनल में उसी में हम कामयाब हुए। हमने अटैकिंग बॉलिंग करनी थी, उसी में हम कामयाब हुए और कम रन पे आउट हुई थी, इसलिए हमारे बैट्समैन की ईजी था। काफ़ी मेन प्लेयर आपकी टीम से निकले, उसके बाद किस तरह आपने जिम्मेदारी ली, इफ्तिखार ने ली, तो क्या आपने यंगस्टर्स को मैसेज देते रहे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अगर KPK की स्ट्रेंथ देखे, बाकी जो सेकंड डिवीज़न की जो प्लेयर आई इधर एडजस्ट हुए, जो बेंच पे थे, तो उन लोगों ने कमी नहीं दी। बिल्कुल वो हमारे सीनियर प्लेयर थे, चले गए, लेकिन जो स्ट्रेंथ था हमारे पीछे वो उन लोगों ने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हो गए। आप लोगों की टीम पे देखें तो यकीन जो है वो बहुत पुख्ता होता है, तो उसकी कोई खास रीज़न है? हार्ड वर्क करते हैं ज़्यादा या फिर एज ए टीम बहुत अच्छा जेल है? हार्ड वर्क तो सब करते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वही है कि जो पॉजिटिव क्रिकेट है, जो कोच हमें मशवरा देते कि हमने जीतना हारना नहीं है, हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और जो प्लेयर जाता है अपना 110% दो, बाकी हार जीत जो है ना वो खेल का हिस्सा है। वही हमने प्लान किया। जो बॉलिंग में मुझे जो रोल दिया है कि पावर प्ले में किस तरह बॉलिंग करें, या इफ्तिखार को जो रोल दिया कि आपने किस तरह एज ए सीनियर प्लेयर लेके जाना है, तो वही हुआ और कामयाब हो गए। अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू। जो KPK के बॉसेस मैसेज और सपोर्टर थे हमारे, उनकी पूरी पाकिस्तान के KPK के लोग बड़े पसंद करते हैं, तो उनके लिए मेरे थैंक यू है, और अल्लाह ने जो कर दिया वो दिखा दिया। चलिए, ऑल द बेस्ट और एंजॉय योर मोमेंट। थैंक यू। Talking about that unity of the side and the celebration at the end, the hard work that goes into all of the preparation and the roles defined. They're beautifully coached by Abdur Rahman, Rifatullah Maman, also doing the job, and it seems as if it's a very drilled side, and that showed in terms of the celebration. You saw the elation of the group. It's not just one man, it's just not two people, it's all of them together, and they played like that throughout the tournament. The depth of the squad was checked, and it came out in flying colors. We'll go down to Marina again. मेरे साथ हैं आसिफ अफरीदी। सबसे पहले तो मुबारक हो, डिफेंडिंग चैंपियन थे, इस बार फिर जीती है ट्रॉफी। आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था स्पिनर्स का, हमने देखा पिंडी में भी रोल था, यहाँ भी था। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मेरा छठा टूर्नामेंट था और 6 के 6 फाइनल में जीत गया। मैं मेरे ख्याल में एक लकी बंदा हूँ, और काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी मेहनत की यहाँ पे, क्योंकि पिंडी में एक तरह की ट्रैक थी, यहाँ पे दूसरी तरह की थी, तो जिसकी वजह से बॉल टू बॉल कैप्टन के साथ डिस्कस करता क्या करना, तो वही हुआ। जिस तरह जो प्लानिंग होती थी तो उसी के मुताबिक हम बॉलिंग करते थे। रोल ज़ाहिर है आपके डिफाइन होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी एज ए सीनियर प्लेयर आई जब मेन प्लेयर्स आपके निकल गए, तो उस वक्त क्या मोमेंटम था टीम का और क्या मैसेज देते रहे? काफ़ी खुशी हुई थी। आज का जो फाइनल था, जो हमने हमारी यही जहन था कि इंशाल्लाह अगर 170 तक इनको रोकते तो इंशाल्लाह ये चीज़ नहीं हम कर लेंगे ईजिली, क्योंकि इफ्तिखार जिस तरह फॉर्म में, कामरान जिस तरह फॉर्म में, फिर फरहान जिस तरह खेल रहे थे, तो ईजी था इंशाल्लाह भैया हमारे लिए। अपने फैंस के लिए कोई मैसेज? बिल्कुल, जिन्होंने हमारी ये दुआ की उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने KPK के लिए दुआ की। इंशाल्लाह हमारे जो आगे टूर्नामेंट हो रहे, उम्मीद है कि उसी तरह ये हमें दुआ में याद रखेंगे। थैंक यू जी। अब आप टीम के साथ एंजॉय करें। थैंक यू। To the performance as well for KP, did a terrific job with the ball as things evolved in this tournament. Here's a look at what happened for Khyber Pakhtunkhwa. Farhan 26 off 28, Harris 10 off 5, Ghulam 37 off 31, he didn't waste any time again. Adil Amin 25 off 21, and Iftikhar not out 45 off just 19 balls. He was the top scorer, and they chased down that total that was posted by home city Central Punjab, which is 148 all out, and not even 20 overs were bowled actually. They chased it down with 3 overs to spare.
Wahab just bowled the 2 overs, 2 for 8 runs. Started off with a maiden, Samin Gul with the wicket, Faizan and Qasim Akram with the wicket, but not enough runs to play with. And in the end, it was very, very comfortable for Khyber Pakhtunkhwa. 152 for 3 in 17 overs. Okay, let's have a look back at the match summary. Saka Batteries presents the Pepsi National T20 21-22 final. Central Punjab posting 148, Shahzad 44, Kamran 42. They both got out at a crucial time. They were 81 for 1 at one stage, and then they collapsed. It really was quite a collapse, losing 4 for 16 at that stage, and then 5 for 17 later on. Iftikhar 3 for 5. What a game he had. Mohammad Imran also on a hat-trick at one stage, 3 for 26. Iqbal a couple for 28. And KP in reply, 152 for 3 it was. Iftikhar unfinished on 45. Ghulam 37. Samin 1 for 19. Qasim 1 for 27. And Faizan 1 for 46. And KP won by 7 wickets in a memorable victory. Okay, we're going to take a break. We'll come back shortly with the presentation. We're not too far away from handing out those medals, and also the smaller trophies and the magnificent big one.
Hello and welcome to the post-match presentation. And what a final we've had. बहुत ही शानदार performance KP की. उन्होंने 7 विकेट से ये मैच जीता सेंट्रल पंजाब के खिलाफ. उनको बहुत-बहुत मुबारक हो. Before we start off with all the awards that we have, first of all, the Pakistan Cricket Board would like to thank its commercial partners for their invaluable support for making this year's competition a success. The Pakistan Cricket Board would also like to thank all law enforcement agencies and government departments for their support in making this tournament a success. And definitely, last but not the least, Pakistan Cricket Board would like to extend its gratitude to the super fans out here who came in big numbers and supported this tournament. आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया. अब मैं तारुफ कराना चाहूँगा हमारे जो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं. Starting from my left, Mr. Salman Nasir, Acting CEO, Pakistan Cricket Board. Thank you for being here. Next to him is Mr. Saad Munawar, Senior Director, Franchise and Key Accounts, PepsiCo International. Then Mr. Nadeem Khan, Director, Domestic Cricket and NHPC. Mr. Farid Zakabajwa, Director, Sales and Marketing, Parkview City. Mr. Akil Ahmed Khokar, GM Sales, Brighto Paints. Mr. Mohammad Dastagir Khan, GM Admin J. And right at the end, Mr. Naseem Rauf, on behalf of Homage Appliances. Thank you all for being here. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नदीम खान साहब से to step forward और हम medals देना चाहेंगे हमारे match officials को. And I'll start off with Mr. Ali Naqvi, the match referee. उनके साथ फिर आसिफ याकूब साहब, field umpire. और आज के फाइनल में उनके साथी Mr. Rashid Riaz, who was also on the field. Mr. Shozeb Raza, the TV umpire. Fourth umpire, Mr. Faisal Afridi, or the reserve umpire, I should say. Official scorer, Azhar Hussain. And Mr. Najmus Saeed, the press scorer. Thank you very much, Nadeem साहब. अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा आज के फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच को, जो कि आके सबसे पहले तो साइन करेंगे ब्राइटो पेंट्स फैन ऑफ द मैच. और ये पहली बार नहीं है. इफ्तिखार अहमद आज के प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के, लेकिन सबसे पहले वो साइन करेंगे ब्राइटो पेंट्स फैन ऑफ द मैच बॉल. And I would request Mr. Saad Munawar to present the Pepsi Player of the Final Match Trophy and Cash Award of rupees 35,000. Mr. Saad Munawar will present this. Very well played, Iftikhar Ahmed. अब कुछ ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं. थ्रू आउट द टूर्नामेंट 33 मैच हुए और इंडिविजुअली बहुत सारे प्लेयर्स ने एक्सेल किया. अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट अवार्ड की, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर फरीद ज़काबाजवा साहब से. वो प्रेजेंट करेंगे पाक व्यू बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट. और ये कैश अवार्ड है 1 लाख रुपए का, और वो जाता है रोहेल नज़ीर को, जिन्होंने 12 डिसमिसल्स ली. उनका ये अवार्ड मोहम्मद हारिस उनके बिहाफ पे रिसीव करेंगे. नॉर्दर्न की टीम से खेलते हैं रोहेल नज़ीर. बहुत शानदार विकेट कीपिंग, 12 डिसमिसल्स. उसके बाद अगला अवार्ड है जे डॉट बेस्ट बॉलर. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर मोहम्मद दस्तगीर खान से कि वो प्लीज़ अगला अवार्ड प्रेजेंट करें. और ये है शानदार परफॉर्मेंस बॉलिंग के डिपार्टमेंट में 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड और ट्रॉफी. इमरान खान सीनियर 16 विकेट्स हासिल की, बहुत ही शानदार बॉलिंग की. रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक इन्होंने किसी भी बैट्समैन को टिकने नहीं दिया. जे डॉट बेस्ट बॉलर इमरान खान सीनियर. नेक्स्ट अवार्ड के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अकील अहमद खोकर साहब से कि वो आएँ और हम देंगे अवार्ड ब्राइटो पेंट्स बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड. और ये है 1 लाख रुपए का और साथ में ट्रॉफी. और ये है साहिबजादा फरहान 447 रन, 447 रन इन द टूर्नामेंट.
अगला अवार्ड है होमेज अप्लायंसेस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और ये ट्रॉफी और कैश अवार्ड है 1 लाख रुपए का। मिस्टर नसीम राउत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अवार्ड दें, और ये जाएगा उस प्लेयर को जिसने बनाए 409 रन टूर्नामेंट में 8 विकेट्स, कप्तान इफ्तिखार अहमद। ओवरऑल शानदार परफॉर्मेंस इफ्तिखार की, बैट के साथ, बॉल के साथ और कप्तानी में लीडरशिप के साथ। अब मैं मिस्टर सलमान नसीर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेजेंट करें ओसाका बैटरीज नेशनल T20 रनर अप ट्रॉफी और कैश अवार्ड 25 लाख रुपए का वहाब रियाज को। कप्तान होम सिटी सेंट्रल पंजाब के, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही सेंट्रल पंजाब की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, फाइट करके फाइनल तक आए और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने फ्रॉम रावलपिंडी एंड देन टू लाहौर। 25 लाख रुपए का कैश अवार्ड और ट्रॉफी। वहाब से बात करना चाहूँगा, वहाब जिसका आप जिक्र कल कर रहे थे कि फाइनल से आपकी दोस्ती अभी तक हो नहीं रही। नहीं, मेरा ख्याल है कि क्रेडिट देना पड़ेगा KPK को, इफ्तिखार एंड को जिस तरीके से उन्होंने ये मैच खेला है। दे डिज़र्व टू विन दिस फाइनल। जब पीछे देखते हैं फाइनल को, ऑब्वियसली स्कोर इतना नहीं था, ओवर्स पूरे नहीं खेल पाई बैटिंग साइड, शायद वहाँ पे लैग कर गए 15-20 रन। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि स्कोर हम लोग कम से कम 20 से 25 रन शॉर्ट थे इस विकेट पे। विकेट बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, स्पेशली एक टाइम पे जब कामरान और अहमद खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग 170-180 करेंगे, लेकिन उन दोनों के आउट होने के बाद एकदम जो है उन्होंने जो है वो रन नहीं करने दिए। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ड्यू फैक्टर को भी मैं यहाँ पे करूँगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा ड्यू फैक्टर का इशू ना होता तो शायद हम लोग ये मैच जो थे वो अच्छा और कम्पिटिटिव खेलते। सेंट्रल पंजाब ने फाइट बहुत अच्छी दी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अपनी टीम को, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे सेंट्रल पंजाब? मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से हर प्लेयर ने एफर्ट किया, जिस तरीके से वो यहाँ तक आए हैं टूर्नामेंट में, फाइनल खेले, मेरा ख्याल है दैट इज़ एन अदर ग्रेट अचीवमेंट। ये मौके आते रहेंगे लाइफ में, मेरा ख्याल है इनसे सीखने की ज़रूरत है एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। और जितने भी फैंस हैं, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर प्रेयर्स। इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं, अगले साल हम लोग कोशिश करेंगे कि ये टूर्नामेंट जरूर जीते। चलिए, वेल प्लेड एंड वेल डन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कप्तान वहाब रियाज जो कि होम सिटी सेंट्रल पंजाब के कप्तान थे, रनर अप ट्रॉफी और 25 लाख का कैश प्राइज लेकर जा रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर साद मुनव्वर से जो कि प्रेजेंट करेंगे पेप्सी नेशनल T20 चैंपियंस कैश अवार्ड 50 लाख रुपए का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा KP के कप्तान इफ्तिखार से कि वो आके रिसीव करें। इफ्तिखार, आपसे बात करते हैं। मैं आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से स्टार्ट करूं या स्टार्ट करूं ओवरऑल टीम एफर्ट से? आपने दोनों डिपार्टमेंट्स में इंडिविजुअली पहले बात करते हैं, शानदार परफॉर्मेंस दी, बैट से, बॉल से भी, कप्तानी भी बहुत अच्छी रही, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। लड़कों ने बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि उनको नहीं बोलना चाहिए, आउटस्टैंडिंग किया है हर फील्ड में, बैटिंग में, बॉलिंग में। ऐसे मतलब आप जेल होके खेलते हो तो कप्तान को थोड़ा आसान हो जाता है। ये फॉर्मूला क्या है KP का? पिछले साल जीते, डिफेंड किया टाइटल, फिर जीते हैं, कोई खास चीज़ आप करते हैं जो बाकी टीमें नहीं कर रही? वही बात कि हम जेल होके खेलते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। इंडिविजुअली आपकी टीमों में बेस्ट बॉलर भी आपके और सबसे ज़्यादा रन बैट्समैन भी आपकी टीम के, तमाम लड़कों ने बहुत मेहनत की, कुछ कहना चाहेंगे अपनी टीम को और लोगों को? सबसे पहले तो मैं अपने सीनियर जो शाहीन है, फ़खर है, मोहम्मद रिजवान ने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है, टीम को यहाँ पे लेके आया है, तो मैं उनको भी इस खुशी में उनको शरीक करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत आउटस्टैंडिंग किया है। और टीम को, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग किया है और हर फील्ड में इन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है कि हम ऊपर के क्रिकेट के काबिल है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही। आप लोगों का मोमेंट है, ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, अपनी ट्रॉफी लें और उसके बाद फिर अपनी टीम को बुलाएं। मिस्टर साद मुनव्वर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर कि कप्तान इफ्तिखार अहमद को पेप्सी नेशनल T20 चैंपियंस की ट्रॉफी दें, जो कि वेल डिजर्विंग ट्रॉफी है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, खैबर पख्तूनख्वा की, डिफेंड किया अपने टाइटल को और एक बार फिर जीत के दिखाया, और एक टीम एफर्ट के साथ आज फाइनल में भी उन्होंने जीत हासिल की यहाँ गद्दाफी स्टेडियम में। और इसके साथ ही प्रेजेंटेशन से इतना ही। हेलो, ए लक्का
They are a happy unit, that's for sure. KP are absolutely delighted with this. They are the champions of the National T20 Cup 21-22. We saw the celebrations before. We heard the comments from the captain thanking all the national players as well. And this is one very happy bunch. They have thoroughly deserved this. Congratulations, Khyber Pakhtunkhwa. Magnificent performance from them. They really played superbly today. They played superbly, of course, in Pindi. And upon coming to Lahore, they continued in that vein. And it really was very special, the way that they went about their work. Very professional. And, of course, they had some individual stars. They had a couple of batsmen in the top 2 of the run scorers. And they had a bowler, Imran Khan Sr., who was the main wicket taker of the tournament as well. So magnificent work from them. And this is a celebration, I think, that's going to go on for some time. Of course, they won it last year as well. They're now starting to build a nice record, and they'll be very keen to front up again next year to make sure that they do the same. A really good, close team unit. I think that's the best way to describe this this group. Mohammad Rizwan was the captain, and he got a real good atmosphere going with him, a nice buzzing atmosphere when he was captain. And when he left, they kept that up, and they were just absolutely magnificent. Okay, well, that wraps it up for the National T20 Cup. From myself and 120 crew personnel from all around the cricketing globe who have brought this tournament to you, I hope you've thoroughly enjoyed it. We have thoroughly enjoyed bringing it to you, and we, of course, will look forward to some more action next year. But at the moment, this team can thoroughly enjoy being victorious. Thanks for being with us. Until next time, it's bye for now. हवा में खेल बैठे, कौन नीचे आएगा? बाबर आजम और ले गए कैच। It's been slammed straight back over the bowler's head for 6. The finger is going up. There it is. That's a good strike. शानदार लाजवाब हैदर अली। शानदार एक और बुलंदो वाला छक्का बॉल कर दिया। परफेक्ट यॉर्कर शाहबाज दानी। Big one down the ground, out of the ground, maximum. शकील खान का शानदार छक्का। He's got it. So it is. There's a hat-trick. Now we've got some celebrations coming our way. That is a beauty. That's another wonderful shot. That is 6, number 4. Tells the whole story. Outstanding stuff from Gordon. Magnificent. Supported by his teammates. Hits it big and gets maximum. And that's it. The screams. The yelps of delight. Teammates are excited.